everything starts from self, knowing self, accepting self, understanding self, and leading self. Good morning, everyone. I, Geeta Sharma, the coordinator of this event, welcome everyone on behalf of the Department of Applied Science and Humanities in this wonderful session on Take Charge of Your Life by Learning Self-Management. My humble greetings towards the speaker of the session, Mr. Mahesh Sharma, and all the respected dignitaries of IPS Group. Before taking the program to the next step, I would like my HOD, the HOD Department of Applied Science and Humanity, Dr. Jyoti Mishra, to extend a welcome note towards the gathering. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning, all of you. Am I audible, ma'am, Geeta, ma'am? Yes, ma'am. Yes, you're very much. Good morning, all of you. I feel privileged to welcome all of you on behalf of my Department of Applied Science and Humanities in the IPS College of Technology and Management, Gwalior. Today, our youth is facing a very common problem, and that is the management of his own self, and that is not the problem which only youth is facing, but the fact self-management is hardly known by people in general. So, with such a beautiful and most required topic, we have amongst us Mr. Mahesh Sharma, the internationally certified life coach. I welcome you, sir, with great warmth and due respect. In series of extending my humble note of welcoming, I welcome Honorable Director IPS GOC Dr. Arun Kumar Tyagi ji, Working President Mr. Ashwini Mishra ji, CEO Mr. P.K. Ghosh, respected Principal of College of Technology and Management Gwalior Dr. P.S. Chauhan. I sincerely acknowledge the presence of principals of other colleges, faculties of different colleges of IPS group, and dear colleagues, participants, and each and every joiner of this session. We are fortunate to have an expert of the field. I hope you all will be benefited by the knowledge inputs from the subject experts. Once again, welcome you all. Thank you all very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. This is my prestige privilege to throw light on the life sketch of the professional career of our eminent speaker. So I'm going to introduce you with the speaker of the session today, and Mr. Mahesh. He's life coach, speaker, trainer by profession, and humanist, researcher, an adventure, nature enthusiast, an entrepreneur by choice. Mr. Mahesh Sharma is founder and chief mentor at Know Your True Self, a research academy and which was founded in the year 2008. It is a research education training community sharing entity in the field of behavioral sciences, energy psychology, emotional health, wellness, mind-body connection, human side of enterprise, life management, and spiritual upliftment. He is an internationally certified coach with IFC and CCA, International Federation of Coach. Mr. Mahesh Sharma has gained experience in different fields before get to the eureka moment of his life. He has gained 10 years of experience in Indian Army. That's worth noticing. 2 decades of entrepreneurship experience in the area of education, self-help, alternate franchise, 4 years hands-on experience dealing with the family business stakeholders, hands-on experience of 12 years of personal coaching and mentoring, 2,000 plus hours of individual coaching experiences, 150 plus psychology behavioral science workshop, 100 plus personal coaching associates, life coaching practices since 2008. Mr. Mahesh Sharma has appeared on live TV shows also in the areas of relationship, management, career, passion development, around 2 decades of practical experiences of understanding, working, and human internal behavior. He's been one of the pioneers, promoters of emotional health and well-being. He's corporate and SME trainer, EFT practitioner certified, NLP practitioner, certified emotional intelligence practitioner, certified timelines therapy practitioner. Apart from all this, he has started a campaign known Mehak with a tagline, each one, reach one,
to help all those people who are living their life in loneliness and they are giving up on because of some emotional problems. So with such a personality being with us today, we are fortunate enough to have Sir with us. He is working upon especially on introvert, the people who are introvert and extrovert. We'll come to know about the difference between introvert and extrovert through Sir. If in the session he gives 10 minutes time especially to this thing. So now, without further ado, I request Mr. Mahesh Sharma to please take over the session, and please enlighten us with all so many things in the life which are going on in the people's life. Thank you so much. Thank you very much. Am I audible? Yes. Am I audible to you? Yes. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And I'm honored to be here after 12 years of working with people from different walks of life. जब भी मैं students के साथ होता हूँ, so I'm using Hindi also. Yes, sir. I request you to please take the session in Hindi and English, both the languages, because actually this is a session because very touchy. Perfectly fine. Thank you so much for giving this permission, because many a time what happens, some kind of feelings are very much, can be expressed in Hindi itself. Yeah. Right. So मेरे 20 साल के करियर में जब भी मैं स्टूडेंट के सामने होता हूँ, एक एनर्जी मेरे अंदर होती है, बिकॉज मैं ये जानता हूँ कि ये जो टाइम चल रहा है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है और यही हमारे पूरे फ्यूचर को डेवलप करता है. और टीचर्स के लिए मेरे एक स्पेशल मेरे मन में रिगार्ड है, बिकॉज वो हैं जो फ्यूचर बिल्डर्स हैं. So आज I'm really fortunate, and before starting this, I want to thank Dr. Arun Kumar Tyagi ji, Director IPS Group, and Mr. Ashwini Mishra ji, Working President, CEO Mr. P.K. Ghosh ji, and Dr. Premanand Singh Chauhan, Principal College of Technology Management, HOD Dr. Jyoti Mishra, and Coordinator Ms. Geeta, for giving me this opportunity to address you all on this particular occasion. So if you permit, I can start this session. Session with a very informal thing to you. कि आज के सेशन में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस सेशन को आप इस तरह लीजिए जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सेशन ना तो आपके साथ नॉलेज शेयर करने का है, ना ये दिखाने का है जो क्रेडेंशियल्स बताए गए हैं उनको कुछ यूज होगा यहाँ पर. आज मैं आपके साथ कन्वर्सेशन में हूँ, आज मैं आपके साथ बातचीत में, क्योंकि मुझे भी पता है कि जब वर्कशॉप्स और सेमिनार्स होती हैं तब उस समय हमारा माइंडसेट क्या होता है. मैं भी खुद स्टूडेंट रहा हूं और बहुत सारे कॉलेजेस में जब मैं बात करता हूं, जब इवन कॉर्पोरेट्स में भी, पीएसयूज में भी जब सेमिनार्स या वर्कशॉप्स होती हैं, तो ट्रुथ ये है कि बहुत से पार्टिसिपेंट यहाँ सिर्फ इसलिए होते हैं कि उनको होना पड़ता है, और कुछ लोग इसलिए होते हैं बिकॉज उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, इस टाइम वो कुछ और नहीं कर रहे होते. बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही कीननेस से वेट कर रहे होते हैं कि ऐसे कुछ सेशंस आए जिनसे उनकी लाइफ में चेंज आए. तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप सेमिनार्स और वर्कशॉप अटेंड करते हैं, उस पूरे 1 घंटे में या 45 मिनट में जो भी बात हो रही होती है, कौन सी लाइन आपकी लाइफ को चेंज करेगी आप खुद नहीं जानते. इसलिए जब भी आप किसी सेमिनार वर्कशॉप में हो, आप पूरा ध्यान लगा के सुने, चाहे आपको उसमें ऐसा लग रहा हो कि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज होती है वहां पर, जैसे एक बुक के अंदर बोलते हैं ना, आप पूरी बुक पढ़ते हो लेकिन उसमें एक लाइन ऐसी होती है जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है. हियर ऑल्सो इन वर्कशॉप सेमिनार्स वो लाइन्स कब आ जाएंगी आपकी लाइफ में पता नहीं. तो जो भी यहाँ अटेंडी हैं उन सब का मैं वेलकम करता हूँ. अदर कॉलेजेस के जो लोग हैं उनको भी मैं वेलकम करता हूँ, स्टूडेंट्स और फैकल्टी ऑल्सो. एंड विद द होप कि आज का सेशन आपको वो जो मिस गीता ने भी वर्ड यूज किया, यूरेका मूवमेंट, एक वो मूवमेंट जो कि लाइफ को एक स्पार्क दे जाता है, आज शायद आपको इस सेमिनार से मिल पाए. नो योर ट्रू सेल्फ रिसर्च एकेडमी इज द एंटिटी व्हिच आई फाउंडेड इन 2008, और इसको फाउंड करने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था कि व्हाट आई फाउंड आउट इन माय कंप्लीट आर्मी करियर एंड द करियर हियर आउटसाइड द आर्मी, सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है. और जब तक हम खुद को नहीं जानते, बाहर की चीजों को जानना सिर्फ ऐसा है कि वो सिर्फ नॉलेज है, वो सिर्फ आपके पास आएगी, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद को पूरी तरह नहीं जानते. और उसी से ये नाम पड़ा नो योर ट्रू सेल्फ. और आज इस अकेडमी को 12 साल हो चुके हैं, और आई एम फॉर्चुनेट दैट लॉट ऑफ पीपल आर स्टार्टिंग वर्किंग ऑन देमसेल्फ फ्रॉम द इनसाइड. सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद यू. So today's session name is Achieving Personal Excellence Through Self-Management. पर्सनल एक्सीलेंस क्या होती है? पर्सनल एक्सीलेंस वो चीज है जहां पर हम अपनी खुद की
यूनिक स्ट्रेंथ्स को और खुद की यूनिक स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल कर पाते हैं, खुद की वीकनेसेस को कवर कर पाते हैं, एंड वी स्टार्ट मैनेजिंग सेल्फ rather than managing the world, and then we start the personal excellence, which is very much required in today's corporate world and today's education world also. So just sharing with the first screen that why we are doing this session, why we all are here. The first thing is why I am here. So anybody who is attending this, especially the students, they need to ask themselves this first question: why I am here? What is the purpose? मेरा पर्पस क्या है इस सेशन में आने का, मैं क्या चाहता हूं इस सेशन से, क्या मुझे मिलना चाहिए? ये आपको पहले अगर आप सोच पाते हैं तो आप इस सेशन को बहुत अच्छी तरह यूज कर पाएंगे। जो भी आप करते हैं लाइफ में, जो भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। नाउ फोकस ऑन द वर्ड ऑफ व्हाई। व्हाट आई एम डूइंग मैं नहीं बोल रहा, व्हाई आई एम डूइंग बोल रहा हूं कि मैं क्यों कर रहा हूं जो मैं वो कर रहा हूं, जो मैं क्यों कर रहा हूं। स्टडीज, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, आखिर मैं उसको परस्यू क्यों कर रहा हूं, क्या रीजन है उसके पीछे, क्या मकसद है उसके पीछे जो मैं स्टडीज परस्यू कर रहा हूं। और जिस तरह से मैं बिहेव करता हूं, चाहे कोई भी मेरा बिहेवियर है, उस बिहेवियर को मैं वैसे क्यों करता हूं जैसे मैं करता हूं। These are why questions. And the last is again why I do what I do. मैं जो भी करता हूं वो आखिर करता क्यों हूं। Now why पे इतना जोर क्यों है वो मैं आपसे अगली स्लाइड में शेयर करूंगा, and you will come to know कि why is the most important word in our life. So let's see it. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेबिनार जो मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था, ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपके साथ क्लियर करता हूं, सो दैट यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। इट्स नॉट टू शेयर इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने के लिए नहीं है कि ये हो रहा है दुनिया में, ये हो सकता है, किताबी बातें शेयर करने के लिए नहीं है, एडवाइस देने के लिए भी नहीं है कि आपको कुछ एडवाइस दिया जाए या आपको आपके साथ कुछ शेयर किया जाए कि ऐसा करना चाहिए आपको। एंड आपको एज ए स्टूडेंट्स शेयर कर, एज ए स्टूडेंट एड्रेस करने के लिए नहीं है, बिकॉज आई सी यू एज यंग एडल्ट्स, आई सी यू एज पीपल who are going to take complete this you can say the complete charge of their lives. So I'm not seeing you as students, I'm seeing you as a human being, as a person who is going to take charge of his life. What it is all about, what this is all about, this webinar is all about share insights. Now what is insights? What is the difference of information and insights? Insights वो होती हैं जब आप acquired knowledge को application में लाते हैं, उस application में लाने के बाद जो आपको experience होता है, that is where the insights come. Yes. So share insights. Increase your level of understanding. जिस भी level of understanding पे आप हैं, आज उस level of understanding को एक notch ऊपर करना है, यानी कि उस level of understanding को वहां लेके जाना है जहां पर आप एक जिस जगह पे आप खड़े थे उससे एक स्टेप ऊपर जा पाए। And the last one, it's for suggest you options and help you choose. आपको ऑप्शन सजेस्ट करने की ये ऑप्शंस हैं आपके पास, और चूज करने में आपको हेल्प करना कि इनमें से आप चूज कीजिए कि ये ऑप्शंस के ऊपर मैं काम करना चाहता हूं। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेबिनार, एंड what we all want in the complete perspective of my 20 years of research and my complete experience, what I found out is that we want success. We all want success. We all want fame. We all want name. हम सबको सक्सेस चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसमें सब कुछ समा जाता है, जहां पर हमारी रिलेशनशिप भी शामिल होती है, बिकॉज सक्सेस की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप फाइनेंशियल सक्सेस में लाते हो, सक्सेस की डेफिनेशन है कि यू आर एज अ होल यू आर सक्सेसफुल। सो सक्सेस, फेम और नेम, इनमें से कुछ लोगों को कुछ चाहिए होता है, लेकिन कुछ लोगों को सब कुछ चाहिए होता है। वी ऑल वांट दिस, वी ऑल हैव एस्पिरेशन। कोई भी ऐसा नहीं है जो घर से ये सुबह ये करके निकलता हो कि आज मुझे सक्सेस ना मिले, ऐसा करके सोच के बाहर निकलता हो, या वो किसी के सामने खड़ा होकर बोलता हो तो उसको लगता हो कि लोग मेरी इंसल्ट करें, या वो नहीं चाहता कि मैं कुछ छाप छोड़ूं दुनिया के अंदर, कुछ अपना एक नाम बनाऊं। ऐसा कोई भी नहीं है जो ये नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि बहुत कम लोग इसको अचीव कर पाते हैं और बहुत से लोग इसको सिर्फ
चाहने में ही रह जाते हैं, यानी वांट में। उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, बहुत से रीजन होते हैं, लेकिन जो 2 मेजर रीजन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो हैं ये 2 reasons why few achieve that. The first, lack of passion, जुनून की कमी। किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी चीज में एक्सीलेंस लाने के लिए आपको जुनून चाहिए। जुनून का मतलब है आपको वो चीज करने में इंटरेस्ट आना चाहिए, उस चीज को करते समय आपको बोरियत महसूस नहीं होनी चाहिए, उस चीज को करते समय आपको थकावट नहीं होनी चाहिए, एंड आपका फोकस पूरा रहना चाहिए। दैट इज जुनून। और इसमें चाहिए वर्ड में हटा देता हूं। जब आप में जुनून होता है, पैशन होता है, तो चाहिए की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप खुद ब खुद उस चीज के लिए उतने डेडिकेटेड होते हो। तो द फर्स्ट थिंग इज लैक ऑफ पैशन, जिसकी वजह से लोग वो अचीव नहीं कर पाते जो वो अचीव करना चाहते हैं। सेकेंड, लैक ऑफ डायरेक्शन। या तो ये दोनों नहीं है या इनमें से एक भी नहीं है। अगर इनमें से एक भी नहीं है तब भी आप भटक सकते हैं। यानी अगर आप पैशनेट हो और आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आप गलत दिशा में चले जाओगे। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक होता है गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल क्या होती है? जिस मिसाइल के अंदर, यानी जो वेपन होता है, जो शस्त्र होता है, उसके अंदर एक कंप्यूटर चिप लगी होती है जो उसको डायरेक्ट करती है कि उसको जाना कहाँ है, तब वो अपने टारगेट पे हिट करती है। और एक होती है मिस गाइडेड मिसाइल, यानी नॉन गाइडेड मिसाइल, जिसको पता नहीं है कि उसको जाना कहाँ है, लेकिन वो है स्पीड उतनी ही, उतना ही बारूद उसके अंदर है, उतना ही उसकी मारक क्षमता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो वो किसी भी जगह पे हिट कर सकती है। सो पैशन के साथ डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की कमी की वजह से what are the major reasons why we remain average, why we remain where we are, इन दोनों की कमी की वजह से। Am I audible to everyone? Yes, yes sir. Perfectly fine. So अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, इवन आपसे क्वेश्चन है, और हो सकता है क्वेश्चन के आंसर ना मिल पाए बिकॉज इट्स अ बिग गैदरिंग, बट क्वेश्चन ये है कि डेस्टिनेशन पहले आता है या डायरेक्शन? यानी हमारी मंजिल पहले आती है या डायरेक्शन पहले आती है? आप कोई इसका जवाब देना चाहेगा? या प्लीज। They have no Yes, muting facility. ask to yes. सर डेस्टिनेशन आएगा, डेस्टिनेशन होने के बाद ही अपन डायरेक्शन पता करेंगे। Perfectly fine, Raghav, right? Yes, perfectly fine. Destination comes first, then direction. Now the question comes, क्या हम लोगों को अपनी डेस्टिनेशंस मालूम है? क्या ज्यादातर लोगों को अपनी डेस्टिनेशंस मालूम होती हैं कि उन्हें जाना कहाँ है? क्योंकि डायरेक्शन तो उसके बाद ही आएगी। जब हम करियर में जाते हैं डायरेक्शन लेने के लिए, तो करियर काउंसलर से मिलते हैं, वो बोलता है कि आपको करना क्या है। वो बोलता है मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो पूछता है आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या आपका एक असेसमेंट लेते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, आप उसको असेसमेंट देते हैं, उसके मुताबिक वो आपको डेस्टिनेशन बताता है कि ये आप कर सकते हो। लेकिन वो डेस्टिनेशन पहले आएगी। और नॉर्मली होता क्या लाइफ में, हम लोग डायरेक्शन मांगना शुरू कर देते हैं विदाउट फाइंडिंग अवर डेस्टिनेशन। सो हियर इट इज टू बी नोटेड, अगर आप लोगों के पास कहीं भी, जहां भी आप लोग बैठे हैं, जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स खासतौर पे, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो प्लीज उसका यूज करें। बिकॉज आज की सेमिनार नहीं है, इट्स अ वर्कशॉप, इट्स अ स्मॉल मिनी वर्कशॉप। तो साथ साथ आप अगर लिख पाते हैं तो बहुत ज्यादा आप इसका फायदा ले पाएंगे। व्हाट कम्स फर्स्ट, डेस्टिनेशन और डायरेक्शन? डेस्टिनेशन कम्स फर्स्ट, बट डेस्टिनेशन को ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए, आइए इसका डिस्कस करते हैं। उससे पहले कि डिस्कस करूं डेस्टिनेशन क्या चाहिए, डेस्टिनेशन क्लियर ना होने से क्या होता है ये देख लीजिए, और इसके अंदर आप रिलेट कर पाएंगे कि व्हाई दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस, क्यों हो रही हैं ये चीजें। क्या होता है जब डेस्टिनेशन डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है? देखिए बहुत कुछ होता है, मैं आपके साथ शेयर करूं जल्दी में। ये एक वर्ड है जिसको कोई प्रोनाउंस करना चाहेगा आप में से? क्या है ये वर्ड? ग्वाशिगाय। ग्वाशिगाय। नाउ ये वर्ड है किस लैंग्वेज का पता है आपको? ये लैंग्वेज है पंजाबी। मैंने यहाँ क्यों यूज किया इसको बताता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मैं जहां पर था, पंजाब रेजिमेंट थी, वहां पर ये लोग बहुत यूज करते थे ग्वाशिगाय। ग्वाशिगाय का मतलब क्या होता है आपने भी देखा होगा, अगर आप ग्वालियर से हैं तो सड़कों पे गाय घूमती है, गाय, और वो गाय को पता नहीं होता मुझे जाना कहाँ है। तो आपको पता है उसकी मूवमेंट कैसी होती है? यू नो, इधर उधर कहीं भी भागती है वो,
दैट्स व्हाई दिस फ्रेज यूज ग्वाची गाय। अगर आपको नहीं पता डेस्टिनेशन कहाँ है तो आप ग्वाची गाय की तरह हो जाते हो। दैट्स व्हाई इट इज यूज। सेकंड, बर्डन महसूस होता है आपकी लाइफ में, फ्रीडम महसूस नहीं होती, सफोकेशन महसूस होती है, घबराहट, घुटन महसूस होती है, क्योंकि आपको नहीं पता आप जाना कहाँ है। कुछ भी मिल जाता है आपको, मिलने के बाद सक्सेस महसूस नहीं होती क्योंकि आपको नहीं पता है। नॉट फीलिंग गुड अबाउट सेल्फ, अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं होता। सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। ये बहुत बड़ा इशू है, सेल्फ एस्टीम लो होना। इतने ही स्टूडेंट हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन सेल्फ एस्टीम लो है तो अपने टैलेंट का यूज ही नहीं कर पाते। लेस फोकस नहीं हो पाता। एडिक्शन स्टार्ट होती है। ह्यूज प्रॉब्लम विद एवरीवन, नॉट विद स्टूडेंट्स इटसेल्फ, बट एडिक्शंस का रीजन ये नहीं है कि आप कुछ ले रहे हो या किसी चीज में एडिक्टेड हो। एडिक्शन रीजन है आपकी लाइफ से पैशन गायब हो चुका है, डेस्टिनेशन निकल चुका है, आपको नहीं पता क्या करना। ब्लेमिंग, लोगों पे ब्लेम स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने इसकी वजह से मैं ऐसा हूं, आज अगर ऐसा होता तो मेरे साथ ऐसे होता, ये सब ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाती है। क्रिटिसिज्म, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है और नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। इतना सब कुछ होता है जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है। और हम इन सब के लिए कहां जाते हैं? वी आर गोइंग समवेयर, अपने फ्रेंड के पास, अपने टीचर्स के पास, अपने सेक्रेटरीज के पास, या किसी की अगर ये चीज बढ़ जाती है तो फिजिकल डिजीज भी शुरू हो जाती है। इवन फिजिकल डिजीजेस आर बिकॉज ऑफ दिस नॉट क्लियर डेस्टिनेशन। और ये जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि फिजिकल डिजीज का रीजन वो नहीं है जो हम समझते हैं। फिजिकल डिजीज रीजन है इमोशनल। तो ये सब कुछ होता है जब डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होता। सो इंपॉर्टेंट। सो एवरेज लाइफ रह जाती है हमारी। आगे देखिए, कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको बोलेंगे प्री सपोजिशन। प्री सपोजिशन कोई शेयर कर पाएगा मेरे साथ? प्री सपोजिशन का मतलब क्या होता है? इफ समबडी वांट टू शेयर प्री सपोजिशन का नाम सुना आपने? It is somehow prejudice or assuming about the forthcoming problems in advance. यस, प्री सपोजिशन है मैं सपोज करके बैठ जाता हूं ऐसा है। मैं आपसे कुछ फैक्ट्स शेयर कर रहा हूं जो आपको मानने चाहिए, और मैं चाहिए का वर्ड सिर्फ एक बार यूज करूंगा अभी क्योंकि ये एक्सपीरियंस के साथ आया। पहली चीज प्री सपोजिशन। प्री सपोजिशन नंबर 1, we don't do what others say, we do what we are convinced at। आपको कोई कितना ही बोलता रहे, आप वो नहीं करोगे जब तक कि आप खुद कन्विंस नहीं हो जाते उसके ऊपर। चाहे आपके ऊपर अथॉरिटी फिगर्स हैं, और ये टीचर्स अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या बोल रहा हूं मैं, और पेरेंट्स भी जानते हैं, हम बहुत सारे लोग पेरेंट्स हैं, कि जो आप कहोगे वो कभी नहीं होगा। होगा वही जो बंदा जो पर्सन जिसमें कन्विंस्ड होता है। दिस इज प्री सपोजिशन, हमें मानना चाहिए। सेकंड प्री सपोजिशन, हम लोगों को वैसे नहीं देखते। वी डोंट सी पीपल एज दे आर, वी सी एज वी आर। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपको सामने वाला दिखाई दे रहा है ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उसकी वजह से नहीं है, ये आपकी वजह से है। आप क्या हो? आप वैसे ही चीजों को देखते हो जैसे आप हो। एक ही इंसान एक के लिए अच्छा हो सकता है, एक के लिए बुरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका नजरिया है, यानी हमारा नजरिया है वो। प्री सपोजिशन नंबर 2। थर्ड प्री सपोजिशन, पीपल आर हार्ड। नाउ जो लोग, अगर थर्ड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, या जो लोग कॉर्पोरेट लाइफ में जाने जाते हैं, उनके लिए ब्यूटीफुल लेसन है। पीपल आर हायर्ड फॉर व्हाट दे नो, बट दे आर फायर्ड फॉर हु दे आर। आपको हायर इसलिए किया जाता है कि आप जानते क्या हो। आपका सीवी देखते हैं, अच्छा ये सब कुछ पता है, इसको हायर कर लेते हैं। लेकिन जब आपको फायर करते हैं ना, तो वो पता क्यों करते हैं? आप कैसे हो, किस तरह के इंसान हो, क्या इंटेग्रिटी है आपके अंदर, क्या आपके अंदर आप लोगों को रिस्पेक्ट दे पाते हो, क्या आप सच बोलते हो। इस तरह की वजह से फायर किया जाता है। तो डोंट फोकस ऑन व्हाट यू, ओनली फोकस ऑन व्हाट यू अचीव, फोकस ऑन व्हाट यू आर, व्हाट यू बिकम। एंड द लास्ट सपोजिशन इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, वी डोंट लाइक पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड अस। और जो फिर भी हमें एडवाइस देते हैं, हम उन लोगों को कभी पसंद नहीं करते जो हमें नहीं समझते लेकिन फिर भी एडवाइस देते हैं, इंक्लूडिंग अवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। No offense to teachers and parents, but I am a parent myself and I am a teacher myself. I know people don't like people who don't understand. So सबसे पहले हम लोगों का काम है understand करना. Then your advice is not taken as an advice. It is taken as suggestion. It is taken as guidance. तो guidance और advice में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये 4 सपोजिशन आप मान के चलें, ये लाइफ के वो मंत्र हैं जो पिछले 20 सालों में मुझे मिले, और किसी जगह पर भी जहां भी मैं गया हूं, इन चीजों के अंदर किसी का विरोधाभास क्रिएट नहीं हुआ है। ये प्रैक्टिकल लाइफ के लेसन्स है। सो दीज आर द प्रीसपोजिशंस। अब देखिए, लिटिल बिट मूव फॉर द मजेदार बात क्या है, ये जितनी भी चीजें मैं आपसे शेयर की हैं, इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर सम पीपल, इट्स अ बैड न्यूज फॉर मेनी पीपल।
गुड न्यूज क्या है? बाहरी दुनिया लेने देना नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, यानी बाहरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स गुड। बैड न्यूज इज द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद मी। देयर इज नो ब्लेमिंग आउटसाइड, बाहर ब्लेमिंग की जरूरत नहीं है। जिस भी पोजीशन पे आप आज हो, जहां भी खड़े हो, उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। नाउ कई बार जब हम डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसे बैकग्राउंड के लोग हैं जो उनके पास एक्सक्यूजेस काफी सारे होते हैं, जैसे हर किसी के पास होते हैं। जैसे मेरे पास वो पेरेंटिंग नहीं थी, मेरे पास वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, मेरे पास वो एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था, मैं इस जगह से हूं, मैं उस जगह से हूं। आप नहीं समझते हो इस चीज को, यही समझ के मैं बात कर रहा था कि अंडरस्टैंड। बट द क्वेश्चन इज, हर एक चीज के पीछे आपको 1000 सक्सेस स्टोरी मिल जाएंगी जो उसी बैकग्राउंड से आई हैं और आज यहां खड़ी है। ऐसा क्यों है? लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ डायरेक्शन, अंडरस्टैंड कीजिएगा। So it's not an outside job, बाहर की है ही नहीं, everything is inside of us. This is an inside job, अंदर ही होना है इसमें काम। और आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि आप अपने ऊपर काम कैसे कर सकते हैं, not only talking but practical ways of doing it. So here it is. First, why we are going to talk, then we are going to talk about what, and we are going to talk about how. तो मैंने ये 3 चीजें क्यों इस प्रायोरिटी पे लिखी है। सबसे पहले आता है why, फिर आता है what, एंड फिर आता है how, कैसे। कहीं भी अगर आपको, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कहीं भी अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है मैं वहां क्यों जा रहा हूं, क्या मतलब है मेरा जाने का। अगर ऐसे ही जा रहा हूं तो फिर तो आपका शुरुआत ही खराब हो गई। आपको पता होना जरूरी है मैं वहां क्यों जा रहा हूं। और फिर सेकंड बात आती है मुझे वहां जाने के लिए क्या क्या चाहिए, दैट इज व्हाट। थर्ड आती है मैं जाऊंगा कैसे। एग्जाम्पल, मैं सूरत गुजरात में हूं आजकल स्टेशन, तो सूरत से मुझे दिल्ली जाना है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, दिल्ली जाना है। क्यों जाना है दिल्ली? क्या घूमने के लिए जाना है, किसी वर्कशॉप सेमिनार के लिए जाना है, किसी मीटिंग के लिए जाना है? क्यों पहले आएगा, पहला क्लियर हो गया। व्हाट आई नीड माई प्रिपरेशन, आई नीड टिकट्स विद मी, मेरे पास टिकट्स होंगी, मेरे पास रिसोर्सेज होंगे। और देन हाउ, कैसे जाऊंगा, प्लेन से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, पैदल जाऊं या ट्रक से जाऊं, कैसे जाऊं, हाउ। सो सबसे पहले वाई आता है। लेकिन व्हाट आई हैव फाउंड आउट, यहां पर उल्टा हो जाता है हमारी लाइफ में। सबसे पहले आता है मैं कैसे करूं, कैसे करूंगा मैं। जो भी क्वेश्चन दिमाग में आता है आप ये कर सकते हो, सबसे पहले दिमाग में आता है कैसे होगा। कैसे बाद में आएगा ब्रदर, कैसे बाद में आएगा। ऑल द पार्टिसिपेंट्स, कैसे इज लास्ट। सबसे पहले पूछेंगे हम अपने आप से क्यों। स्टडी आप कर रहे हैं या कॉलेज में आते हैं, क्वेश्चन पूछिए क्यों जा रहा हूं कॉलेज में, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। किसी के सामने कुछ आएगा, किसी के सामने कुछ आएगा, लेकिन ट्रुथ को फेस कीजिए, वही है ट्रुथ आपका। सो हम इसी पैटर्न में आगे चलेंगे और इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूं आपके साथ। सबसे पहले वर्किंग ऑन व्हाई। तो जिन लोगों ने भी, आई एक्सपेक्ट, दो ये एडवाइस नहीं है और मुझे पता है इसके पीछे भी रीजन है, जिसके पास भी पेन एंड पेपर होगा स्टूडेंट्स में से, वो इसको नोट करना चाहे तो कर सकता है। वर्क ऑन व्हाई फर्स्ट। सबसे पहले व्हाई पे काम कीजिए। आइडेंटिफाई योर व्हाई। जो भी मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं, अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, अगर मैं खेल रहा हूं तो क्यों खेल रहा हूं, मैं हॉबीज परस्यू करता हूं तो क्यों करता हूं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो व्हाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ दिस इज नॉट क्लियर, आगे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आगे सब कुछ मिसगाइडेड होगा। डिस्कवर व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस, देन आस्क योरसेल्फ। अगर ये व्हाई क्लियर नहीं हो पाता, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्लियर नहीं हो पाता व्हाई आपका, तो आप छोटे में कर लीजिए। सबसे पहले देखिए खुशी किसमें मिलती है। तो जस्ट शेयरिंग एक्सपीरियंस, सम पीपल आर वेरी वेरी स्मार्ट एंड नॉटी। तो एक ऐसी वर्कशॉप चल रही थी, तो वहां पर उससे बोला, तो उन्होंने बोला कि सर मुझे तो सोने में मजा आता है, मुझे तो ना, अगर आप पूरा दिन सुलाए रखो, आई एम हैप्पी। तो यू जस्ट वांट टू पोक समथिंग। द क्वेश्चन इज why you are happy when you are sleeping, because you are escaping from something। आप किसी से भाग रहे हो, क्योंकि एक इंसान को 10 घंटे के बाद की नींद होती नहीं है, वो सिर्फ आलस में पड़ा रहता है। क्यों भाग रहा हूं कहीं से। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे बिजनेस आइडियाज भी थे। वेल, आगे देखिए, डिस्कवर व्हाट गिव्स यू मीनिंग। ये वर्ड मीनिंग इतना बड़ा है कि इसको मैं छोटे से वर्कशॉप में नहीं ले सकता, लेकिन मीनिंग, हम सबकी लाइफ का मीनिंग होता है, और अगर वो मीनिंग नहीं मिला, लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 85% to 90% people are living meaningless life।
मीनिंग नहीं है लाइफ के अंदर। और मीनिंग क्या होता है, क्या कर रहा हूं, उससे क्या होगा, और वो जो होगा वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, उसका कोई मीनिंग है क्या? दैट इज मीनिंग। एंड द लास्ट वन, when you are working on your why, is discover what gives you satisfaction. Satisfaction और fulfillment word. Satisfaction, किसी चीज को करने के बाद जब सेटिस्फाई होते हो आप, तो फुलफिलमेंट के साथ सेटिस्फेक्शन चाहिए। यानी कई बार क्या होता है, सपोज करो आप बहुत थके हुए, आपको मूवी देखना है, आपको लगता है मैं थोड़ा थक गया हूं, मेरे को मूवी देखनी चाहिए, लेकिन मूवी देखने के बाद सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि आपको क्या लगता है, आई वेस्टेड माय टाइम, 3 घंटे बर्बाद कर दिए, या मैंने जस्ट 3 घंटे निकाल दिए। फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड fulfilling is the result of meaningful work. So why? Work on why. When you work on that, it's a complete process of that. ऐसा नहीं है कि प्रोसेस नहीं है, लेकिन आज इस छोटे से वर्कशॉप में आपको सिर्फ मैं हिंट दे सकता हूं। Then we start to working on what. What में कहां से, जो मैंने why में अपना पाया कि मुझे इसलिए करना चाहिए, what do I need to achieve, मुझे क्या चाहिए उसके लिए, जो मुझे why में मिला, रिसोर्सेज क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आईएएस बनना है, मुझे पढ़ के बड़ा आदमी बनना है, क्या रिसोर्सेज चाहिए मुझे बुक्स चाहिए, मुझे टीचर्स चाहिए, मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां पर मैं क्वेश्चन पूछ सकूं, जहां पर मैं अपने डाउट्स क्लियर कर सकूं, ये रिसोर्सेज चाहिए। ओके, परफेक्ट। किस तरह का एटीट्यूड चाहिए मुझे, विनिंग एटीट्यूड चाहिए, मुझे लूजिंग एटीट्यूड नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रगल का एटीट्यूड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आई एम लर्निंग एटीट्यूड चाहिए। इस तरह के एटीट्यूड्स चाहिए मुझे अपने वाई की तरफ जाने के लिए। क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए। में आगे जाना है, चाहे पढ़ने में आगे जाना है, स्किल्स चाहिए, और स्किल्स को डेवलप कैसे करना वो आगे आएगा। बट रिसोर्सेज, एटीट्यूड, स्किल्स, ये रिक्वायर्ड है जहां मुझे जाना है उसके लिए। ओके, नाउ कम ऑन दैट, बिहेवियर्स चाहिए। सिर्फ स्किल से काम नहीं चलेगा, एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा, बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए। मेरे अंदर बहुत अच्छा एटीट्यूड आ गया, बहुत अच्छी स्किल आ गई, लेकिन मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, स्किल्स को मैं एक्शन में नहीं ला रहा हूं, बिहेवियर ठीक नहीं है मेरे। बिहेवियर्स चाहिए। ये 4 चीजें चाहिए मुझे अपने वाई तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट, लेट्स कम ऑन टू द हाउ। कैसे, ये सबसे लास्ट है, लेकिन कैसे करेंगे। हाउ विल आई एग्जीक्यूट माई व्हाट टू गो टुवर्ड्स माई वाई। जो व्हाट है मुझे चाहिए, उसको मैं एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, उसको मैं कैसे करूं, वो आता है इस पार्ट में। पहली चीज, माई गोल्स। गोल क्या है, क्या मुझे आईएएस बनना है 60 साल की उम्र में, क्या मुझे गेम्स में आगे जाना है पता नहीं कब। गोल्स चाहिए। क्या आपके रिटर्न गोल्स हैं, क्या स्टूडेंट्स से बात कर रहा हूं मैं, क्या स्टूडेंट्स के रिटर्न गोल्स हैं, क्या एक भी गोल ऐसा है जो आपने लिखा, और अगर लिखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं लिखा है तो आज ही नोट करें, आज रात को बैठ के आपको गोल लिखना है। और अगर आपको लगता है आपका गोल नहीं है तो ये भी लिखना है, मेरा कोई गोल ही नहीं है, मुझे गोल फाइंड आउट करना है। दैट्स व्हाई यू विल कम टू यू, फैक्ट्स की बात करेंगे, ट्रुथ की बात करेंगे। प्लानिंग क्या है, गोल हो गया, प्लानिंग क्या है, आई वांट टू बी फिट, परफेक्टली फाइन, गोल है। फिट बाय डेट, मंथ आएगा तो गोल बनेगा, लेकिन फिट बाय के बाद प्लानिंग आएगी। अब मैं करूं कैसे इसको, प्लान क्या है मेरा, इसके पीछे मेरी एग्जीक्यूशन का प्लान क्या है, और एक्शंस क्या है। प्लान भी बना लिया, अब प्लान पड़ा हुआ पेपर के ऊपर, एक्शंस क्या है। सो हाउ के अंदर ये 3 चीजें आएंगी, गोल्स, प्लानिंग एंड एक्शन। So that's why we work with why, what and how. आज शाम को बैठ के अपने साथ आधा घंटा लगाइए और why, what और how को चेक कीजिए, क्या ये आपकी लाइफ में है। अगर नहीं है तो एक चीज लिख लीजिए, जब तक ये नहीं होंगे आपको वो नहीं मिलने वाला है जो आप अचीव करना चाहते हो। तो दिस इज नॉट डिस्काउंटेड एट ऑल, आपको ये करना ही है। तो लिख लीजिए, चाहे इसमें 0 आए, चाहे इसमें 10 वर्ड आए, लिखिए इसको। आगे चलते हैं। एंड माय डेली एक्शंस, ये लास्ट है। एक्शंस एक चीज है, डेली एक्शंस एक चीज है। नाउ if I can ask someone, whoever in the participant, including the faculties, एक्शंस और डेली एक्शन में कोई फर्क है क्या? If somebody want to share, मैंने डेली एक्शंस अलग से लिखे हैं और एक्शंस अलग से लिखे हैं। Daily actions become our habits. Daily actions, we are addicted of doing those things. Absolutely. We are practicing them. Yes.
सो एक होते हैं एक्शंस जो कि एक्शन करने हैं, एक होता है उनका डेली में लाना, जैसे कि अभी गीता ने बोला हैबिट बन जाती है। जब तक आप उन एक्शंस को डेली में लेके नहीं आते तब तक आप उस माइक्रो उस जगह नहीं पहुंचते जहां पर आप अचीव करने की टाइम पे चल रहे हैं। तो डेली एक्शंस होते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। सो ये 4 चीजें हैं, माय गोल्स, प्लानिंग, एक्शन, डेली एक्शन, जो हाउ में आते हैं। सो व्हाई, व्हाट एंड हाउ की बात करेंगे। अब जो आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहां पर कुछ मिथ में आपके तोड़ने वाला हूं, कुछ बिलीफ सिस्टम चेंज करने वाला हूं। चेंज होंगे जैसे मेरे हुए थे, मे भी हो सकता है कुछ लोग इसको ठीक समझे, कुछ लोग ना समझे, लेकिन धीरे धीरे आप इसको अगर आत्मसात करते हैं तो आपको आइडिया मिलेगा कि बट मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। नो बुकिश थिंग इज एडेड हियर, कंप्लीट प्रैक्टिकल। यू कांट मैनेज द वर्ल्ड, यू कैन ओनली मैनेज योरसेल्फ। दुनिया को मैनेज कर ही नहीं सकते आप, इम्पॉसिबल है ये, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, आपकी लाइफ बहुत छोटी है। किस किस को मैनेज करोगे? यहाँ जो मैरिड है वो अपने पार्टनर को मैनेज नहीं कर सकते, अपने बच्चे मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज इन द सेंस मैनेजमेंट चाहिए उसके ऊपर। हम स्टूडेंट्स को मैनेज करते हैं, वहां डिफिकल्टी आती है। हम मैनेजमेंट को पता है इसमें क्या दिक्कत आती है। हर कोई मैनेजमेंट करना चाहता है, लेकिन एक लिमिट है उसकी। आप पूरी दुनिया को मैनेज नहीं कर सकते। आप किसको मैनेज कर सकते हो? खुद को। और इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट इज दी फाउंडेशन ऑफ ऑल मैनेजमेंट। जब तक मैं खुद को मैनेज नहीं करूंगा, मैं किसी को मैनेज नहीं कर सकता। फर्स्ट एंड प्राइमरी रिक्वायरमेंट। सो हियर कम्स दी सम ऑफ दी अराउंड 10 मैंने फाइंड आउट किए हैं जो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर हमें हमारे सामने हमेशा आते हैं। 10 ऐसे प्रिंसिपल्स जिन पे काफी सारे मिथ्स हैं। सबसे पहला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की इतना बड़ा चैलेंज है दुनिया में कि मेरे पास टाइम नहीं। टाइम कैसे मैनेज करूं? इतनी सारी चीजें मुझे करनी है, मैं कैसे करूं उसको? तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सेमिनार्स होती हैं, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सी बुक्स लिखी हुई हैं, आपको वीडियोस मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं कि टाइम को किस तरह पहले डालें, किस तरह बाद में डालें। बहुत सी बुक्स हैं इसके ऊपर अच्छी, बट उन सबको पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हो रादर देन क्लियर। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ऐसे मेरे साथ नहीं हो पाता, ये राइटर मुझे जानता नहीं है, ये स्पीकर मुझे जानता नहीं है, ये जो कह रहा है मुझे नहीं समझता, मैं कैसा हूं, अंडरस्टैंड मी। सो जस्ट टू टेल यू, you don't have to manage time. This is not a problem of time management, it's a problem of self management. टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। आप सोचो, जब रोड पे चलता है कोई इंसान, गाड़ी पे चल रहा होता है, फास्ट मूवमेंट चल रहा होता है, तेज जा रहा होता है, और उसको अपने ऑफिस पहुंचना है घर से निकलते समय, तो आपको क्या लगता है टाइम नहीं था उसके पास? या टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है? नो, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सुबह अगर आधा घंटा पहले उठा होता, ब्रेकफास्ट आधा घंटा पहले किया होता, तैयार आधे घंटे पहले हो गया होता, तो आज रोड पे भाग नहीं रहा होता। तो रोड रेज, जो आप रोड पे एक्सीडेंट्स देखते हो, उसमें बहुत बड़ा रोल है सेल्फ मैनेजमेंट का, नॉट टाइम मैनेजमेंट। जो आपकी जिंदगी में अगर टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा पीछे जाके देखें सेल्फ मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो डोंट फोकस ऑन मैनेजिंग टाइम, फोकस ऑन मैनेजिंग सेल्फ। अपने को फोकस कीजिए, मैं खुद को, सेल्फ को, क्या मेरी हैबिट्स हैं जो मेरे टाइम को किल करती हैं? क्या मेरी हैबिट्स हैं जो मैं जानबूझ कर करता हूं? फॉर एग्जांपल मेरे साथ भी हुआ, मेरे घर में भी मेरा बेटा है, मेरे वो है, जब ट्रेन टाइम होता है उस पर्टिकुलर टाइम से एक लिमिटेड टाइम पर ही निकलना है उसको स्टेशन में पहुंचने के लिए, क्योंकि उसको पता पहुंच जाऊंगा। बट आप उससे क्या 10 मिनट पहले नहीं निकल सकते? निकल सकते हो, लेकिन हैबिट क्या है? आई विल रीच देयर। दैट कॉन्फिडेंस, दैट सुपर, you can say that extra confidence आपको हटा देता है। Yes, Geeta, you want to say something? Yes, that is overconfidence I wanted to say. Yes, वो आपको आपके टाइम मैनेजमेंट से अलग कर देता है। अब क्या है, अगर आपको रास्ते में जाम मिल गया, अगर आपकी गाड़ी में कुछ हो गया, तब क्या करोगे आप? तब किसको ब्लेम करोगे आप? टाइम मैनेजमेंट को ब्लेम करोगे? नो, स्टॉप ब्लेमिंग टाइम मैनेजमेंट। टाइम हम सबके पास है, सेल्फ मैनेज करने की जरूरत है। तो स्टार्ट मैनेजिंग सेल्फ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एनर्जी मैनेजमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी एनर्जी लग कहां रही है, आप इसको समझें। एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी सबके पास है, सिर्फ फर्क ये है कि मैं लगा कर रहा हूं उसको, किस तरफ लगा रहा हूं, उसकी मैनेजमेंट क्या है। मॉनिटर एंड मैनेज योर थॉट्स। सोच क्या रहे हो आप? और सोचने का मतलब यह है कि अगर आप ये सोचो कि मैं बैठा हूं और सामने स्क्रीन पर मेरे थॉट्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और वो प्रोजेक्शन जो है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया बात। प्रोजेक्शन अच्छा नहीं लगता, आप किसी को नहीं दिखाना चाहते, तो इसका मतलब थॉट्स ठीक नहीं आ रहे हैं। थॉट्स को देखिए, क्यों?
एनर्जी मैनेजमेंट में भी एनर्जी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने थॉट्स मैनेज करने की जरूरत है। क्यों? योर एनर्जी गोज वेयर योर थॉट्स गो। जहां आपके विचार जाते हैं एनर्जी भी वहीं जाती है। तो आपको एनर्जी मैनेज की जरूरत नहीं है, यू हैव टू मैनेज योर थॉट्स। और सोच को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, कैन समबडी गिव मी टाइम, बिकॉज मैं थोड़ा टाइम से जा रहा हूं, मैं अपने सामने घड़ी रखा हुआ है मैंने, but I'm going. Sir, you can complete the session. We need some question answer session as well after this with you. Perfect. Yes. I'll take care of that. Thank you. Attitude management. क्या है attitude management? बहुत important है attitude management. मेरा attitude world के लिए है कैसा? Attitude क्या होता है? मैं कैसे दुनिया को देखता हूँ, कैसे दुनिया को observe करता हूँ, किस तरह से react करता हूँ। दुनिया खराब है, दुनिया चोर है, लोग ऐसे हैं, टीचर्स ऐसे हैं, पेरेंट्स ऐसे हैं, ये मेरा एटीट्यूड है। इसको मैनेज कीजिए, क्योंकि ये मैनेज बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग, ब्लेमिंग। पहला एटीट्यूड ब्लेमिंग। ब्लेमिंग का भी अगर आपके अंदर आ गया तो आपने अपनी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। बिकॉज ब्लेम क्या होता है? मेरे ऊपर जो, मेरे साथ जो परेशानी है वो किसी की वजह से है। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सही टाइम पर सही चीज देते तो आज मैं यहां नहीं होता। मेरे टीचर्स ये मुझे इस तरह नहीं समझाते, मेरे फ्रेंड जो है वो ठीक नहीं है। सब ब्लेम। क्यों? क्योंकि मैं वो नहीं कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, तो मैं अपनी चीजों को दूसरों पे डाल देता हूं। एंड टू टेल यू ट्रूथ, आई एम नॉट अगेंस्ट ब्लेमिंग, बिकॉज ब्लेमिंग से कई बार बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डाल दो आप। मैं फेल हो गया, इस वजह से हुआ। क्यों? मोदी सरकार, इसकी वजह से मैं आज फेल हूं, या कांग्रेस की वजह से फेल हूं। फेल किसी की वजह से नहीं होगा, ना ही पास किसी की वजह से होते हो। आप होते हो जब ब्लेमिंग हटा देते। तो फर्स्ट थिंग टू कीप ऑफ ब्लेमिंग, ब्लेमिंग हटाइए। सेकंड, विक्टिमाइजेशन। कैन समबडी एक्सप्लेन और आंसर विक्टिमाइजेशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। भला क्या है विक्टिमाइजेशन? Can we keep it in bullying means getting bullied by others or becoming victim of others' behavior? परफेक्टली फाइन। दिखने में ऐसा ही है गीता, दिखने में ऐसा ही है, लेकिन विक्टिमाइजेशन का मतलब होता है दया पात्र बन जाना। विक्टिमाइज्ड हूं मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है। ब्लेमिंग का एक दूसरा रूप है। अब मैं विक्टिम बन गया, अब मैं एक तरह से सिस्टम का विक्टिम हूं, एक तरह से लोगों का विक्टिम हूं। अब तो मैं बस ऐसे ही बेचारा, मेरे ऊपर सभी जो है मेरे ऊपर हावी होते हैं, मैं विक्टिम बन गया। विक्टिम बनते ही आप विनिंग मेंटेलिटी से दूर हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग हम विक्टिम हैं। सोचिए विक्टिम कैसे हैं? इस चीज का विक्टिम हूं, इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, ब्लेम कर रहा हूं तो मैं विक्टिम बन जाता हूं। जितना ज्यादा ब्लेम करते जाएंगे विक्टिमाइजेशन उतनी बढ़ती जाएगी, और ये आपको उतना दूर लेके जाएगी अपनी उससे, क्योंकि विक्टिमाइजेशन की बाहर की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। सिंपैथी, हम लोग सिंपैथी गेन करना चाहते हैं सबकॉन्शियसली। हर कोई चाहता है सामने वाले से ये गेन करना, मैक्सिमम लोग ये गेन करना कि देखिए मैं इस परिवार से हूं तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए मेरे पास बैकग्राउंड ऐसा है तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सिंपैथी गेन करते हैं, और वो सिंपैथी आपको सिर्फ वीक बनाती है, स्ट्रांग नहीं बनाती है। स्ट्रांग के लिए आपको सिंपैथी नहीं, एम्पैथी बनानी चाहिए। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। आगे देखें, नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, ह्यूज प्रॉब्लम। लोग कहते हैं मुझे हेल्प नहीं मिलती, मैं कहता हूं हेल्प मांगो तो सही। टीचर्स के लिए मेरा रिस्पेक्ट क्यों बढ़ता जा रहा है? ऐसे टीचर्स मैंने देखे ही नहीं है जिनके पास स्टूडेंट आए हेल्प मांगने के लिए और वो हेल्प ना करें। लेकिन जब स्टूडेंट जाएगा ही नहीं हेल्प मांगने के लिए, तो वो हेल्प कहां से आएगी उनके दिमाग में? कैसे करेगा वो? और वो क्यों नहीं जाते? अभी मिस गीता ने पहले बोला इंट्रोवर्जन, जो मैं आज शेयर करूंगा आपके पास। इंट्रोवर्ट है, जैसे उन्होंने पूछा कि ये क्वेश्चन है क्या, लोगों का हाथ यहीं तक खड़ा होता है, बस ऊपर जाता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर गया तो मुझसे पूछ लेंगे कुछ, तो यहीं तक रहता है, अंदर रह गया। कौन बताएगा आपको? एंड आई कैन गारंटी यू, टीचर्स are ready to give you answers, are ready to help you. Reach to them. पहुंचो तो सही। और पहुंचने के बाद अगर एक भी, आज तक मुझसे किसी ने शेयर नहीं किया कि मैं टीचर के पास गया उसने मना कर दिया, मैं नहीं बताता हूं, नहीं होता है ऐसा। वो भंडार है, लेकिन निकालना तो आपको ही पड़ेगा ना। समुद्र के नदी के सामने बैठे हो लेकिन पानी नहीं पी सकता, क्यों? आपके पास गिलास भी नहीं है, आपके पास मग भी नहीं है, उठा के पीना तो पड़ेगा आपको। नदी तो बह रही है। टीचर्स आर लाइक रिवर्स, बह रही है, निकालो ना उसमें से कुछ।
और उनके निकालने से फर्क नहीं पड़ेगा। टीचर्स के अंदर तो बहती हुई धारा है। नॉट आस्किंग फॉर हेल्प, नेगेटिविटी, खुद से पूछिए एम आई पॉजिटिव, एम आई नेगेटिव, आंसर मिल जाएगा। और जैसे ही आंसर मिले आप वाई लगा दो, वाई आई एम नेगेटिव, और अगर उसका आंसर ब्लेमिंग में आता है तो यू आर राइट ऑन ट्रैक, आपने पता कर लिया कि मेरे प्रॉब्लम कहां है। एंड द लास्ट वन इज होपलेसनेस। होप, आशा, होपलेसनेस बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन आपने होप खोई उस दिन आपने लाइफ खो दी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खत्म हो जाते हो। जिसके अंदर से होप निकल जाती है वो समाज के लिए, परिवार के लिए और खुद के लिए सिर्फ एक वेजिटेटेड बन जाए। वेजिटेशन का मतलब है सिर्फ खाना खाते हो और सोते हो और कोई वजूद नहीं रहता। इसलिए होप को पहले रखें। होप क्या होता है? आने वाला टाइम कैसा होगा मैं उसके लिए आश्वित हूं। होप एक बहुत बड़ी चीज है। सो दीज आर एटीट्यूड मैनेजमेंट के अंदर आप काम कर सकते हैं। एरोगेंस, एरोगेंस यानी मैं रूड हूं, एरोगेंट हूं, अग्रेसिव हूं, डोमिनेटिंग हूं। ये जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूं, ये सब चीजें अगर आप में पाई जाती हैं तो अपनी इनसिक्योरिटीज को फाइंड आउट कीजिए। एरोगेंट पीपल आर द मोस्ट इनसिक्योर्ड पीपल। जितने लोग डोमिनेटिंग हैं वो इनसिक्योर हैं, क्योंकि डोमिनेशन कहां से आती है? दबा के रखने से। और दबा के क्यों रखना चाहता हूं? क्योंकि सामने वाला मुझ पे हावी हो सकता है, मुझे डर है। फियर is also the cause of arrogance and this attitude. So अगर आप में ये एटीट्यूड है एरोगेंस का, तो अपनी इनसिक्योरिटीज को खोजें कहां से आ रहा है। जितने भी कॉन्फिडेंट लोग हैं, जितने रियल में कॉन्फिडेंट है, उनको एरोगेंट नहीं देखोगे आप, क्योंकि एरोगेंस नहीं चाहिए वहां पर, उनको जरूरत ही नहीं है उसकी। सो दीज आर एटीट्यूड मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अनदर फिजिकल हेल्थ मैनेजमेंट, जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं या एक्सट्रीम में ले जाते हैं। मुझे जिम जाना है, 7 दिन जाना है, बॉडी बनानी है जिम जाके, और अपने आप को शो करना है। फिर इंस्टाग्राम पे आऊंगा, फिर फेसबुक पे आऊंगा, फिर समथिंग आऊंगा कि देखो मैंने बॉडी बनाई। बट फिजिकल हेल्थ मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट मेकिंग बॉडी, जस्ट शेयरिंग विद यू। ये मैंने फोटो क्यों डाली, ये मैं जानता नहीं हूं उनको, लेकिन क्योंकि मैं खुद मैराथन रनर हूं तो मैंने मैराथन की फोटो डाली है। वेल, इंडल्ज इन एनी फिजिकल एक्टिविटी विद ए गोल। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो लोगों को बहाने में लॉकडाउन में क्या करूं, लेकिन आप अगर आप सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसका स्मार्टफोन नहीं है, उसके अंदर एक ऐप होती है 7 मिनट वर्कआउट। एक ऐप है 7 मिनट वर्कआउट। इट्स अ ब्यूटीफुल ऐप, मैं 2 साल से यूज कर रहा हूं। 7 मिनट का वर्कआउट है उसके अंदर, जो आपको पूरे दिन की एनर्जी दे देता है। वो क्या है? सिर्फ स्मार्टफोन आगे रखिए, जगह कितनी चाहिए? 2x2, 4, सॉरी 2 छोड़ी रहेगी, 4x4, 4x4 की जगह चाहिए, सामने फोन के अंदर है, एंड यू कैन डू दैट। सो नो एक्सक्यूज। लेकिन एक्टिविटी का गोल होना चाहिए। जैसे गोल क्या होना चाहिए? टू स्टे फिट। मुझे फिट रहना है, क्योंकि अगर मैं फिट नहीं रहा तो बाकी सब चीजें साइड में चली जाएंगी। ट्रीट योर बॉडी एज द फाइनेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट मशीन यू हैव। अपनी बॉडी को कचरे का डिब्बा मत समझें। व्हाई आई एम सेइंग कचरे का डिब्बा? जो हम खाते हैं आप उस पर गौर करें कि हम खाते क्या है, और आप उसको नोटिस करें कि क्या क्या चीज मेरे अंदर जा रही है। क्या ठूसा तो नहीं जा रहा है कहीं मेरे अंदर, और क्या जो चीज मैं डाल रहा हूं। अगर मेरे पास एक फाइनेंस मशीन होती है, एग्जांपल आपका कंप्यूटर है, आप उसमें वायरस को नहीं आने देते। आपका मोबाइल है, आप उसको हमेशा क्लीन रखते हो। मशीनों को हम क्लीन रखते हैं, लेकिन बॉडी की परवाह किसे है? ध्यान रखिएगा। अगर आप बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। इंटेलिजेंट है वो, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन उसको भी पता है कि इंटेलिजेंस के अंदर फाइनेंस मशीन में अगर आपको तेल ऐसा चाहिए जो बिल्कुल फाइन होगा और आप उसमें मिट्टी का तेल डाल दोगे, काम नहीं करेगी। तो ट्रीट योर बॉडी एज मोस्ट इंटेलिजेंट वन। इस पे आप अपना होमवर्क भी कर सकते हो। बॉडी की फिजिकल इंटेलिजेंस इतनी हाई है कि इसको आप इसको महसूस ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपने कुछ खाया, सुबह ब्रेकफास्ट किया होगा, क्या आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? उसका कौन से केमिकल रिलीज कर रही है, वो किस जगह पे वो उसको तोड़ के शुगर बनाएगी, एनर्जी को करेगी, कौन सी चीज आपसे बाहर जाएगी, कौन सी चीज स्टे करेगी। ये सब बॉडी की फाइनेस्ट इंटेलिजेंस काम कर रही है अंदर, आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ इतना पता है डालना क्या है, तो उस पर फोकस कीजिए। तो फिजिकल हेल्थ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। हेल्थ के 3 पार्ट होते हैं। हेल्थ इज नॉट ओनली फिजिकल, 3 पार्ट। इमोशनल हेल्थ मैनेजमेंट, ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज ये सबसे इग्नोर्ड था, और 2008 में मैंने इसी पे रिसर्च शुरू की थी। ये एक कार्टून आपके सामने है। Why are you so happy? I have no idea.
आपने ये तो सुना होगा, व्हाई आर यू सो सैड, पता नहीं मैं क्यों सैड हूं, लेकिन ये सुना है, आई हैव नो आइडिया। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा ना, मैं खुश हूं पता नहीं क्यों, उस दिन आपकी जिंदगी में जो बदलाव आएगा ना, वो आपको वर्ड के थ्रू नहीं बता सकता। It's a complete revelation, it's a complete revolution in your life. So emotional intelligence, identify, accept and improve upon. अपनी इमोशंस को आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको किसी बहुत ही गुस्सा आया, क्वेश्चन पूछिए, ये इमोशन क्या थी? गुस्सा था, किसी और पे गुस्सा था, मुझ पे खुद पे गुस्सा था, ये इरिटेशन थी, या ये सैडनेस थी, या ये हेल्पलेसनेस थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इस वजह से गुस्सा आया। Identify your emotion and then accept it. Okay, this is my emotion, and then improve upon it. Next time I'll take care of that. कहने में आसान है, प्रोसेस है ये, लेकिन आइडेंटिफाई इट। सेकंड, फियर को आइडेंटिफाई कीजिए। बहुत बड़ी इमोशन है। क्या आपकी लाइफ में फियर है क्या? और अगर फियर है तो किस चीज का फियर है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे ही फियर सामने आए लिख लीजिए और उसको देखें, डरे मत उससे, बिकॉज फियर आधा तो वैसे ही चला जाता है जब डरते हो आप, डर के नहीं, उसको सिर्फ देखते हो। लिमिटिंग बिलीव, क्या होता है लिमिटिंग बिलीव? आई वांट टू आस्क यू समबडी एल्स, व्हाट इज लिमिटिंग बिलीव्स? क्या होते हैं? राघव, ओके, आपने रेज हैंड किया है, एक मिनट ठहरिए। यस, ये मैंने आपको, यस सर। A person those who don't believe more than them दोबारा बोलिए। on others. A person those who don't believe more than them. मतलब अपने से ज्यादा दूसरों पर विश्वास करते हैं ऐसा, या दूसरों पे कम करते हैं? दूसरों पे कम करते हैं। Okay, okay. So just give you a little bit of idea of limiting belief. Limiting beliefs are those areas, those belief, those विश्वास मेरे अंदर जो मुझे लिमिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस सब्जेक्ट में आगे नहीं जा सकता, मैं इस खेल को आगे नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे साथ। ये जितने भी ये चीजें जो मेरे साथ पॉसिबल नहीं है, ये चीजें जो हैं, मैं इस बैकग्राउंड से हूं, मैं वहां तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये होते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। यानी अपने वो बिलीफ्स जो कि आपको लिमिट कर देते हैं, वो होते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। इनको फाइंड आउट कीजिए, क्या है लिमिटिंग बिलीफ्स आपके, उनको एड्रेस कीजिए। जेलेसी का वर्ड आपने सुना बहुत बार होगा, लेकिन जेलेसी नॉर्मली ईर्ष्या के रूप में सामने आती है। बट ईर्ष्या के बहुत सारे रूप हैं, और आज मैं जो रूप एक आपको बता रहा हूं वो ये, किसी भी दूसरे शख्स की सक्सेस को देखकर अपने आप को कोसना या उसको भला बुरा कहना इज जेलेसी। तो ये जेलेसी का पार्ट आपको उस तक कभी नहीं पहुंचने देता जहां आप जाना चाहते हो। आपको जो बनना है वैसा शख्स अगर आपके सामने आए तो प्रेज देम, प्रेज, क्रिटिसाइज को हटा दीजिए, प्रेज को लाइए, जेलसी खत्म हो जाएगी। एंगर, गुस्सा बहुत लोगों में है, हम आगे एंगर मैनेजमेंट की बात करेंगे, लेकिन एंगर किस लिए है, एंगर की जरूरत क्या है? एंगर इज ए गुड इमोशन, बट वो कहां पर आती है, किस वजह से आती है, उसको देखिए। एंड लास्ट इज सफोकेशन, घुटन, महसूस करना कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ऐसा महसूस करना और अंदर ही अंदर घुलना। ये है डिप्रेशन का बहुत बड़ा रीजन, जो कि खास तौर पर इंट्रोवर्ट्स के अंदर पाया जाता है, जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा, जो शेयर नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को। शेयर योर फीलिंग्स with your friends, with your teachers, with your parents, with your whoever you believe in, share। अंदर मत रखिए सफोकेशन। सो ये है इमोशनल हेल्थ मैनेजमेंट, जिसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ शेयर किया। इसको देखें, बिकॉज ये अंदर चल रहा होता है, दीमक की तरह काम करता है। एंड दिस वन, मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट। मेंटल हेल्थ गलत मत लीजिएगा, मेंटल हेल्थ कभी पागलपन की तरफ नहीं जाती है जो कि लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग जो 6 इंच का है ना, ये सबसे बड़े से बड़े कंप्यूटर को फेल कर देता है। रिसर्च सेज हमारे दिमाग के अंदर उतने डेटा के पॉइंट्स हैं जितने 1000 सुपर कंप्यूटर्स मिला के भी नहीं होंगे। ये सो पावरफुल। मेंटल हेल्थ को कैसे ध्यान रखें? एक्सप्रेस योर थॉट, जो मैंने पीछे बात की, जो भी थॉट आ रहा है उसको एक्सप्रेस कीजिए। हाथ ऐसे नहीं, ऐसे खड़ा कीजिए।
क्या होगा ऐसे खड़ा करेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अपने जवाब देंगे, वो जवाब थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं बट वो ऐसे होंगे जो आपके अंदर से आ रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके क्वेश्चंस जो है ना वो इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। एक्सप्रेस योर थॉट्स, टेक गुड मेंटल फूड। खाना तो बहुत खाते हैं, फिजिकल की बात हो गई, दिमाग के लिए खाना, दिमाग को खाना चाहिए, पॉजिटिव खाना चाहिए, मोटिवेटेड खाना चाहिए, वो दीजिए। गुड मेंटल फूड क्या है? गुड बुक्स। ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए जो आपको समझते हो, जिन पर आप विश्वास करते हो। ऐसे वीडियोस देखिए, ऐसे मूवीज देखिए जो इंस्पायर करें। ये है मेंटल फूड, और जितना अच्छा मेंटल फूड होगा उतने मेंटल थॉट होंगे। साउंड योरसेल्फ विद लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा कि ये कहावत है कि अगर मुझे आपको जानना है तो मैं सिर्फ आपके 5 दोस्तों को जानकर आपको पहचान सकता हूं कि आप कैसे हो। वो क्या है? ये है वो चीज जो आपको संगत का फर्क जिसे बोलते हैं। ऐसे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ आप रहिए, अपने आप को सराउंड कीजिए, रेलिवेंट बुक्स पढ़िए। आज की डेट पे जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, आपके पास ई बुक्स अवेलेबल है, फ्री ई बुक्स अवेलेबल हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। रेलिवेंट चीजें पढ़िए एंड आइडेंटिफाई द पावर ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के पावर को आइडेंटिफाई कीजिए। जितना आपको पढ़ाया जाता है, जितना आपके पास बुक्स में है, उतने से काम नहीं चलता, क्योंकि वो बेस है और वो पढ़ाना जरूरी है। इसलिए आपको सेल्फ स्टडी करनी ही होगी। और सेल्फ स्टडी का जरिया ये नहीं है कि आप सोचिए घर में किताब पढ़नी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी का मतलब है अलग अलग जगह से, रिसोर्सेज से अपनी उस नॉलेज को बढ़ाना। दैट आर कॉल्ड सेल्फ स्टडी। सी दिस mental health, anger management, another very important thing, anger management. Identify the issue. गुस्सा आ रहा है, इश्यू को आइडेंटिफाई कीजिए। गुस्से में मत जाइए कि मुझे उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से क्यों गुस्सा आ रहा है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। क्योंकि उसने मुझे वर्ड बोला, ये वर्ड बोला तो आपको छुआ क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि उसने मुझे इंसल्ट की। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि सेल्फ एस्टीम लो है। ओके, इश्यू इज सेल्फ एस्टीम लो, एंगर नहीं है, तो एंगर मैनेजमेंट कीजिए। लिसन टू द फीलिंग आफ्टर द एंगर। गुस्सा होने के बाद फीलिंग को नोट कीजिए। कैसा लग रहा है? फ्रस्ट्रेटेड? कैसा लग रहा है? अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है? कैसा लग रहा है? हेल्पलेस? आइडेंटिफाई इट, नोट इट डाउन, बिकॉज ये है वो रीजन जिसकी वजह से आप गुस्सा हो रहे हो। इंक्रीज द रिएक्शन विंडो। दिस इज अ कंप्लीट प्रिंसिपल। इसके ऊपर पूरी वर्कशॉप ली जा सकती है, कम्युनिकेशन की वर्कशॉप। कम्युनिकेशन के अंदर सबसे बड़ा पार्ट रिएक्शन। और आज लिख लीजिए, रिएक्शन और रिस्पॉन्ड की बात करने वाला हूं। अपनी लाइफ में से रिएक्शन को निकाल दीजिए, रिस्पॉन्ड को ले आइए। फर्क क्या है रिएक्शन रिस्पॉन्ड में? रिएक्शन इज जब कोई चीज आपके पास आती है, आपका इक्वल रिएक्शन वहां से आता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। रिस्पॉन्ड इज चीज आपके पास आई, कंटेम्पलेट किया, सोचा, एंड देन यू रिप्लाई, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन रिस्पॉन्ड। सो डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। और रिएक्शन विंडो जो मैंने लिखा हुआ वो ये, आपकी विंडो अगर आज ऐसी है कि आपको किसी ने कुछ बोला और फटाक से आपने उसको जवाब दे दिया, तो रिएक्शन विंडो इज 0। रिस्पॉन्ड क्या है? आपने किसी ने आपको कुछ बोला, आपने सोचा और आपने फिर जवाब दिया, रिएक्शन विंडो थोड़ी सी खुल गई, 1। और किसी ने कुछ बोला, आपने सोचा और अगले दिन उससे बात की जब वो ठीक मूड में है कि कल ये बात हुई थी, आई थिंक मेरे को आपसे डिस्कस करना चाहिए, रिएक्शन विंडो खुल रही है। जितना ओपन करेंगे, रिलेशनशिप का बहुत बड़ा फंडा है ये। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट यहीं से खत्म हो जाते हैं। रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं है, ये सिर्फ टीचर्स का काम नहीं है, ये सिर्फ कोचेस का काम नहीं है। आप भी अंडरस्टैंड करें ह्यूमन नेचर को। और मैंने अपने करियर में देखा है, लोग कोशिश करते हैं लेकिन करते हैं मैनिपुलेशन के लिए। मैं दूसरे का दिमाग पढ़ सकता हूं, ओके, क्या करोगे पढ़ के? मैं जानना चाहता हूं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा। किस लिए जानना चाहते हो? इसलिए जानना चाहते हो कि आप उसको डिफेंड कर पाओ, उससे लड़ पाओ। सही सही माने में इस्तेमाल कीजिए ना, कि मेरी बात किसी को बुरी लगी क्या, जो मैं बोल रहा हूं लोग बोर तो नहीं हो रहे उस चीज से। कोशिश कीजिए। ये होता है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। बहुत ही पावरफुल चीज है। ह्यूमन नेचर इज सो गुड कि मुझे अभी, जब मैं आर्मी में था तब से लेकर अभी तक 30 साल हो गए, और मुझे आज भी लगता है कि पहला दिन है ह्यूमन नेचर को समझने में। बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट, दे आर कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। सो एंगर मैनेजमेंट का एंगर से कोई मतलब नहीं है, इन चीजों से मतलब है। परफेक्शन मैनेजमेंट। नाउ हियर इज समथिंग विच मैं आप सबसे खासतौर पे टीचर से परमिशन चाहूंगा कि एक्सक्यूज मी, अगर यहाँ पर कुछ भी
आपकी चीजों से बाहर जाए तो। परफेक्शन मैनेजमेंट, डोंट गो फॉर परफेक्शन, गो फॉर एक्सेलेंस। परफेक्शन एक बीमारी हो गई है, डिजीज क्रिएट कर रही है। यू नो दैट परफेक्शन इज अ डिजीज इटसेल्फ, कि मैं सब कुछ अच्छा करना चाहता हूं, सब कुछ बढ़िया करना चाहता हूं, जब तक नहीं होगा मैं करूंगा, अपने आप को अच्छा फील नहीं करूंगा। छोटी मोटी अचीवमेंट तो मुझे खुशी देती नहीं। मेरा बेटा अगर 91% ले आया तो मैं दुखी हूं, 94 लाने चाहिए क्योंकि पड़ोसी वाला 95 लाया। अगर मैं खुद अपने घर को साफ सुथरा रखती, हाउस वाइफ जो है घर को साफ सुथरा रखती है, टीचर्स भी हैं, अगर उसमें उनको सफाई नहीं दिख रही है, कहीं कोने में ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो उनको दिक्कत हो रही है कि ये सफाई नहीं हो रही है। अगर हम टीचर्स हैं, हम परफेक्ट तरीके से नहीं अपने आप को, अगर मैं टीचर होके गलती कर रहा हूं तो मुझे लगता है हाउ मैं गलती कैसे कर सकता हूं। परफेक्शन इज ए डिजीज। आप अगर परफेक्शन के पीछे भागोगे तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, बिकॉज परफेक्शन का हमेशा लेवल बढ़ता रहता है। कहां जाइए आपको? एक्सीलेंस पे जाइए। एक्सीलेंस क्या होता है? अगर आपसे गलती हो गई, एक्सेप्ट इट, अपोलोजाइज एंड देन करेक्ट। क्या हुआ? गलती हो गई तो गलती कोई बड़ी चीज नहीं है कि हर कोई सुनता है। हम कितनी बार सुनते आ रहे हैं, एडिसन ने बल्ब बनाया, 1000 बार फेल हो गया, सुनते सुनते कान पक गए, आपके भी पक गए होंगे। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती या सामने वाले की छोटी सी गलती आपको आपको पूरा हिला देती है। तो क्या फायदा एडिसन को सुनने के लिए? गलतियां कीजिए, एक्सक्यूज मी, गलतियां कीजिए लेकिन नई गलतियां कीजिए। बार बार अगर आप एक गलती को दोहराते हैं तो ये इंसेनिटी की निशानी है, पागलपन की निशानी है। गलतियां कीजिए, नई कीजिए, बिकॉज नई गलतियां करने से नया आएगा, नया इन्वेंशन, नई डिस्कवरी क्रिएट होती है। नई गलतियां कीजिए। डोंट गो फॉर परफेक्शन, गो फॉर एक्सीलेंस। परफेक्शन आपको किल कर देगा। एंड डिप्रेशन का कारण परफेक्शन भी है। बहुत सारे केसेस परफेक्ट टेम्परामेंट से आते हैं, जिनका परफेक्शन टेम्परामेंट, देयर टेम्परामेंट्स होते हैं बहुत सारे, परफेक्शन का टेम्परामेंट है, वहां से आते हैं डिप्रेशन केसेस, क्योंकि उन्हें लगता है आई एम नॉट वर्थ इट, मैं तो काबिल ही नहीं हूं उसके, बिकॉज परफेक्शन नहीं आया। सो परफेक्शन से हटिए। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रीम बुक आज मैं आपसे शेयर करूंगा, हिंट दूंगा आपको। ड्रीम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ड्रीम मैनेजमेंट इज नॉट सपना, सो कह रहा हूं वो नहीं कि रात में मुझे सपने में क्या आया, ये नहीं। ड्रीम मैनेजमेंट इज, आप जब बैठते हैं, आप क्या लाइफ में बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, कैसा होना चाहते हैं, इसके बारे में जब आप सोचते हैं, उस सोच को बुक पे उतारिए। बिल्ड अ ड्रीम बुक। आपकी होगी, किसी से शेयर मत कीजिए, खुद से शेयर कीजिए कि मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा घर चाहता हूं, ऐसी पर्सनैलिटी चाहता हूं, ऐसी पढ़ाई चाहता हूं, ऐसी जॉब चाहता हूं। लिखिए उसको, क्योंकि जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक आप उसके लिए काम नहीं कर पाएंगे। वाई तो यहां से शुरू हुआ ना, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे ये करना है। ड्रीम बुक बनाते हैं आप और उसको बार बार रेफर कीजिए, बार बार, हफ्ते में एक बार तो देखिए उसको। पिक्चर लगा सकते तो पिक्चर लगाइए। कभी टाइम मिला तो आपके साथ ड्रीम बुक में अपनी शेयर करूंगा, मेरी ड्रीम बुक कैसी है। उसमें ज्यादा पिक्चर्स नहीं होगी, लेकिन ड्रीम बुक कैसी है जो मैंने 10-15 साल पहले बनाई। ड्रीम बुक बनाइए और उसमें लिखिए जो आप अचीव करना चाहते हैं, और उसको अचीवमेंट की तरफ जा रहा हूं कि नहीं। हर साल आपको पता लगेगा, कुछ टिक हो गए उसमें से, कुछ पेंडिंग हो गए, कुछ एक्स्ट्रा जुड़ गए उसके अंदर। इट्स अ ब्यूटीफुल टूल, ड्रीम बुक। एंड मे बी दिस इज लास्ट वन, स्ट्रेंथ मैनेजमेंट। ये क्या होता है? दिस इज समथिंग आई वांट टू स्पेशली फोकस ऑन। ट्रू स्ट्रेंथ क्या है मेरी, आइडेंटिफाई देम। मैक्सिमम लोग अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को नहीं जानते, एंड दे आर सीइंग देमसेल्फ एज, जो स्ट्रेंथ है उनको बहुत ही कम लेवल पे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन के पास मैथमेटिक्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है और साइंस के अंदर स्ट्रेंथ है, तो वो अपनी मैथमेटिक्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में जोर लगाता है, रादर देन साइंस को और एक्सेल करने में, क्योंकि उसको लगता है यहां मैं कमजोर हूं। आपकी स्ट्रेंथ किस एरिया में है, जहां आप पढ़ते हो, उस पढ़ने में किस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में मजा आता है, उस सब्जेक्ट पे गौर कीजिए, बिकॉज वहां पर आप एक्सीलेंट हो सकते हैं, रादर देन ओनली गोइंग फॉर द वीकनेस एंड कंप्लीट इट। प्लान टू एनहेंस देम, उसको एनहेंस करने का प्लान कीजिए स्ट्रेंथ को, और अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले कीजिए, वीकनेस पे प्ले मत कीजिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करके उसको उस पर प्ले कीजिए। और इसी के साथ वीकनेस मैनेजमेंट भी आपसे शेयर करूंगा, जो कि सेल्फ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। वो क्या है, इससे ही आपको दिख जाएगा। आइडेंटिफाई योर एक्चुअल वीक एरियाज। आखिर मेरा वीक एरिया है क्या,
वो नहीं है जो लोग बोलते हैं, वो नहीं है जो टेस्ट में से निकल के आता है, वो नहीं है जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं, वो भी नहीं है जो आपके टीचर्स बोलते हैं। वीक एरियाज वो हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं वीक हूं और मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। लर्न टू एक्सेप्ट देम, एक्सेप्ट कर लीजिए। पहला स्टेप एक्सेप्ट, ओके आई एम वीक एरिया, एक्सेप्ट वीक हेयर, एक्सेप्ट इट। एंड देन गलतियां करने से अपने ये क्यों आया, क्योंकि जब भी आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको लगेगा मैं गलती कर रहा हूं, इस पे घबराएं नहीं, कमिटिंग मिस्टेक्स पे कभी घबराएं नहीं और लर्न करें उससे। सो आज एक वर्ड और मैं आपको देना चाहूंगा जो आप लिख सकते हैं, लाइफ में से वीकनेस और मिस्टेक्स को हटा दीजिए और सिर्फ लर्निंग को ले आइए, क्योंकि हर एक वीकनेस और हर एक कमी आपको कुछ सिखा के जाती है, और ऐसा सिखा के जाती है जो कभी भी सक्सेस नहीं सिखाती है। इसलिए लर्निंग को ले आइए, वीकनेस और उसको हटा, किसी के अंदर वीकनेस नहीं है, सिर्फ लर्निंग एटीट्यूड कमी है। एंड कॉन्स्टेंटली इंप्रूव अपन देम, लगातार उस पर काम कीजिए, उसको बढ़ाइए, कमियों से घबरा के पीछे मत हटिए, कमियां सामने आ गई उसको ठीक करिए। सो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स जो मैं इतने टाइम में आपके साथ शेयर कर सकता था, और आई थिंक आई एम राइट ऑन टाइम। सो मैं यहाँ पर अपने सेशन को खत्म करना चाहूंगा, और ये वो एरियाज हैं जिसको हम अचीविंग पर्सनल एक्सेलेंस बोलते हैं। सिर्फ मैं आपको सम अप करना चाहूंगा कि हमने किया क्या, और अगर आपने नोट किया तो सिर्फ ये तीन चीजें नोट कर लीजिए। पहली चीज, डिस्कवर योर व्हाई, फर्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, आइडेंटिफाई द व्हाट, क्या चाहिए उस व्हाई तक पहुंचने के लिए। तीसरी चीज, टेक एक्शंस ऑन द हाउ, और हाउ पे एक्शन लीजिए। ये सेल्फ मैनेजमेंट के सबसे इजीएस्ट और सबसे आसानी से समझने वाले स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिन लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड की और जिन लोगों ने नोट किया उनके लिए थैंक यू, जिन्होंने नोट नहीं किया आपका भी टाइम आएगा जब आप नोट करोगे। बट थैंक यू सो मच। आई एम ending my session here, and we can open for question answer if you like. Before giving this session in the hands of participant for the question and answer session, I would request Mr. P.K. Ghosh sir. So please sir, speak a few words for the session. Well, it's noon time, so good noon to everybody. And today it is a very sunny and bright sunny day. And I hope that in this part of the country it is sunny day, and perhaps in other parts of the country and elsewhere, wherever our participants are located, it's a sunny day. And in this sunny day, I think it is a good idea to have a fresh look at ourselves. And as the topic was introduced and conducted by Mr. Mahesh Sharma ji, gave us the opportunity to look at ourselves as to what is our strength. If we are able to identify the strength and build on the same strength, and if we are able to know our weak areas and work upon them, as also if we are able to determine the hidden potentialities, then perhaps we will be in a position to perform to our full potential. So it gives us a very good experience for us to identify our strength, weakness, and potentialities so that we can build upon that. Well, with these few words, I think that this session has been very interesting as well as enriching for ourselves. And this will help us to, well, chart out the roadmap for our achieving the life goal. Thank you so much, sir. So now I'm more energized after listening to the father figure of the college, and he's always with our support. Thank you so much, sir. And now this session goes to the students. I request all the students, they can ask directly the question to the speaker, or they can write in the chat, whatever they wish to do. If they can ask directly, that will be good. The speaker will listen and will reply there only. I just read the question. The question is how to stop the overthinking problem. Yes, sir. Overthinking. This is the problem these days.
Now, overthinking is a problem these days, but overthinking is not problem for everybody. Understand this first. Overthinking सबके साथ प्रॉब्लम नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों के टेम्परामेंट अलग अलग होते हैं. वी आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड. ओवरथिंकिंग एक पर्टिकुलर टेम्परामेंट में आती है और खास तौर पर परफेक्शनिस्ट के साथ आती है. नाउ अंडरस्टैंड, इंट्रोवर्जन की जब हम बात कर रहे थे तो ज्यादातर इंट्रोवर्ट्स ओवरथिंकिंग के शिकार होते हैं. तो अपने आप को जाने कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं. इंट्रोवर्ट हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अंदर ही अंदर रहते हैं, अपने अंदर की बात को शेयर नहीं कर पाते हैं और चीजों को अंदर प्ले करते हैं. जितना प्ले करते हैं उतना वो उसमें फंसते जाते हैं. तो ओवरथिंकिंग को हटाने के लिए आपको एक्शन के साथ काम करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. अगर मुझे कोई काम करना है और उसको करने से पहले मैं सोच रहा हूं उसको कैसे इस तरह करूं कि वो इतना अच्छा बने कि मैं, अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन देनी है, मैं उस प्रेजेंटेशन में ये सोच रहा हूं इतनी अच्छी बने कि लोग इंप्रेस हों उससे, और उसके लिए मैं उस पर बहुत काम कर रहा हूं और आखिर तक मैं उस प्रेजेंटेशन को ठीक तरह नहीं बना पाता क्योंकि मैं बार बार सोच रहा हूं कि इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए. अगर मुझे क्रिटिसिज्म मिल गई तो क्या होगा? सो ओवरथिंकिंग का सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये कि आप एक्शन में लाएं चीजों को और एक्शन से फाइन ट्यून करें, रादर देन पहली ही थॉट में सोचें कि इसको बहुत अच्छा बनाना. कितने ही राइटर्स, जो बुक राइटर्स हैं, वो इस ओवरथिंकिंग की वजह से बुक नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसी बुक लिखूं कि पहली बार में जाके बेस्ट सेलर बन जाए वो. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो कोई भी चीज जब आप ओवरथिंक करते हो तो इसका मतलब है आप पहली थिंक के ऊपर ये थिंक कर रहे हो कि इसको और बेटर कैसे करूं, और बेटर कैसे करूं, और अच्छा कैसे करूं, यानी इतना अच्छा कि सबको पसंद आए. तो ओवरथिंकिंग में आप एक्शन नहीं ला रहे हो. जैसे ही एक्शन लाओगे आपकी ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी. सो आस्क योरसेल्फ, क्या मैं सोचता ज्यादा हूं और एक्शन कम लेता हूं? ये बहुत पॉसिबिलिटीज है आपके सामने, इस वजह से ओवरथिंकिंग आती है. सो स्टार्ट टेकिंग एक्शन. Now, next question I'm taking, sir. How I overcome my fear of regarding my aim. This question is not with the name, but one of the participants has asked how I overcome my fear regarding my aim. When I try to focus, then I can't focus properly. What can I do? Fear of regarding my aim. How can I find out the aim? So participant is Redmi Note 5 Xiaomi. This is the participant. Good. So जब आप बोल रहे हैं कि एम के लिए मेरे को फियर है, तो पहली ही चीज आपने अच्छी बता दी कि फियर है. किसी भी एम को लेके जब हम कोई एम बनाते हैं तो फियर्स होते हैं, लेकिन फियर दो तरह के होते हैं. एक फियर ऑफ फेलियर, एक फियर ऑफ सक्सेस. कौन सा फियर है आप? फियर ऑफ फेलियर. फियर ऑफ फेलियर है तो इसका मतलब जो एम आपने बनाया है उस एम पर आप विश्वास नहीं कर रहे. आपको लगता है कि मैं नहीं अचीव कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा कम एम कीजिए, थोड़ा सा छोटा एम कीजिए, एंड जब उस पर कॉन्फिडेंस आए तब बड़ा एम कीजिए. और अगर फियर ऑफ सक्सेस है, आपको बता दूं फियर ऑफ सक्सेस भी होता है. फियर ऑफ सक्सेस है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एरिया में जाएं कि क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं. अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आएगी, आप उसको लेने को तैयार हैं. तो ओवरकमिंग ऑफ फियर एम के लिए जो है ना, वो एम से रिलेटेड नहीं है, वो आपके ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, आपके एटीट्यूड से रिलेटेड है कि आप एम को कैसा दिख रहे हैं. इतना हाई एम मत बनाइए जो आपको लग ही रहा है अभी से कि मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा या बहुत मुश्किल है. छोटे छोटे एवरेस्ट पे जाने से पहले कंचनजंगा K2 को हम एक बार पार कर लें तो हम एवरेस्ट पे जाना आसान हो जाएगा, रादर देन हम सीधा एवरेस्ट पे जाते हैं. तो छोटे कीजिए थोड़े से एम और उनको अचीव कीजिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, फिर हट जाएगा. That the question is, sir, how I overcome the negative thoughts. This people bring negative thoughts before bringing the positive thoughts. So how can they overcome this? So basically, Priya, it's not a problem of thoughts per se. It's a problem of self-esteem. Self-esteem में कैसे प्रॉब्लम होती है? जब मैं अपने आप से, यानी अब इसको समझिए, मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा हाई लेवल है, लेकिन जब मैं अपने आप से प्यार नहीं करता, जब मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करता हूँ, जब मैं अपने आप पे डाउट करता हूँ, तो ये नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं मेरी माइंड के अंदर. इट्स नॉट प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ माई थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, माई विजन अबाउट माई सेल्फ. तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या आप अपने आप को पसंद करते हो? क्या अपने आप को अच्छा महसूस करते हो? क्या आपको लगता है कि मैं अच्छी हूँ? क्या आपको लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो अच्छी चल रही है? डू यू लव योर सेल्फ? डू यू प्रेज योर सेल्फ फॉर समथिंग? या कोई प्रेज आपको करता है तो आप उसको ले पाते हो? क्या उसको ढंग से एक्सेप्ट कर पाते हो उस प्रेज को? ये सब चीजें आप अपने आप से पूछनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें
आपको नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेके जाती हैं व्हेन यू स्टार्ट नॉट लविंग योरसेल्फ. सो स्टार्ट विद योरसेल्फ, लविंग योरसेल्फ, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एंड इंप्रूविंग सेल्फ. ये नेगेटिव थॉट्स अपने आप खत्म होंगे. Well, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून गारो. Sir, I have a question. I face uncomfortable when I am with some people. Sir, I want one suggestion. If I improve them, or rather than I move on from them. ओके, सो कुछ लोगों के साथ आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो. Same question, sir. I think he's coming to that part. What I told you to talk about this introversion and extroversion. Yes, I understand. I'm getting the point कि अब देखिए इसमें दो पार्ट्स होते हैं. अगर मैं कोच की तरह से देखूं तो ये बहुत अधूरा क्वेश्चन है, लेकिन मैं अब यहाँ पर एज ए रिसोर्स पर्सन की तरफ देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोगों के साथ अनकंफर्टेबल होते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस. आप बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं जो नॉर्मली इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं, क्योंकि उनको लोगों का वैलिडेशन, लोगों का अप्रूवल बहुत महत्व रखता है उनके लिए. सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या बोलेगा, या मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं ढंग से, मैं ठीक तरह से बोल पा रहा हूँ कि नहीं, मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, इंग्लिश ठीक है, मैं सही इंप्रेशन डाल पा रहा हूँ कि नहीं सामने वाले के ऊपर. ये सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ जाती है इंट्रोवर्ट्स के ऊपर. सो जिस तरह से आपका क्वेश्चन आया है, मुझे लगता है कि आप इंट्रोवर्ट कैटेगरी में आते हैं. अदर फैकल्टी जो उनको जानते होंगे वो अच्छी तरह समझ पाएंगे. लेकिन जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है. चैलेंज ये है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि फोकस बहुत ज्यादा डाल रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे. अपने आप को लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, कैसे मुझे जज करते हैं या मुझे कैसे वैलिडेट करते हैं, इस बारे में ज्यादा सोचते हैं. और मैं आपके साथ हूं क्योंकि मैं भी उसी का पार्ट हूं. मेरा भी एक्चुअल यही टेम्परामेंट था, जिसको मैंने जब आइडेंटिफाई किया तो मुझे समझ में आया दिस इज नॉट अ मिस्टेक, इट इज बहुत ज्यादा सोच रहा हूं मैं अपने बारे में, बहुत ज्यादा देख रहा हूं. एंड टू टेल यू राघव, दुनिया के पास लोगों को देखने का टाइम नहीं है. एवरीबडी इज सो एनग्रॉस्ड इन देमसेल्फ कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे. और अगर कहेंगे भी तो वो सिर्फ आपको नहीं कहते, वो ऐसे लोग हैं जो सबको ही ऐसा बोलते हैं, यानी ये उनका टेम्परामेंट है. तो इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर कंटेम्परेट कीजिए, अपनी नेचर पे जाइए और उस नेचर को समझाएं या समझने की कोशिश करें कि मुझे लोगों से वैलिडेशन नहीं चाहिए. यहां पर एक चीज जो मैं एज ए कोच आपको बोल सकता हूं, आप अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले नहीं कर रहे हैं राघव, अपनी वीकनेस पे फोकस कर रहे हैं. आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेंथ है जिसको आप ओवरलुक कर रहे हैं. उस स्ट्रेंथ को खोजिए और उसको बढ़ाइए. अगर आप, मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, एपीजे अब्दुल कलाम, दोनों की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क है. लेकिन क्या एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आते ही सामने आपको एक रिस्पेक्ट की फीलिंग नहीं आती है? क्या उनका नाम सामने आते ही आपको एक ऐसे बंदे की फीलिंग नहीं आती है जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है? लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बालों को लेकर, इवन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग मेरे बालों को देख के मुझसे बोलते थे कि कैसे बाल बनाए हुए इन्होंने, ये प्रेसिडेंट है. लेकिन उन्होंने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया. क्यों? क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले कर रहे थे. आपकी भी कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेंथ होगी जो इन सबको ओवरकम कर जाएगी. उस स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कीजिए और उस पर बिल्ड कीजिए. ये चीजें अपने आप हटती हैं. ये चीजें कभी भी इन पे फोकस करने पर नहीं हटेंगी. अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए. राइट राघव? Okay, sir. I have one more question, sir. Yeah, please. Yes. Sir, is expectation from others is right or wrong? Okay. It's a question जिसके दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन इन एट ऑल इज नॉट राइट. क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या होती है? आप दूसरों से वो एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आप चाहते हो. और कभी भी जब हम किसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं जो हम चाहते हैं, तो बेसिकली जैसे हमने पहले कहा था, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम होते हैं. तो मान लो मैं किसी की रिस्पेक्ट करता हूं तो मैं चाहता हूं वो मेरी रिस्पेक्ट करे. मैं किसी को प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं वो भी मुझे प्यार करे. मैं किसी के साथ अगर उसके लिए मैंने कुछ किया तो मैं चाहता हूं वो मेरे लिए करे. बट ये चाहत ही आपको सबसे बड़ी परेशानी दे सकती है, क्योंकि सामने वाले की लाइफ, उसका टेम्परामेंट, उसका सोचने का तरीका, उसका देखने का तरीका आपसे डिफरेंट हो सकता है. जिस तरह की आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, शायद वो रिस्पेक्ट की डेफिनेशन उसके निगाह में नहीं है वो जो रिस्पेक्ट जिस तरह से आपकी निगाह में है. तो वो रिस्पेक्ट करेगा भी तो आपको रिस्पेक्ट नहीं लगेगी. आप चाहते हो, आपने थैंक यू सॉरी बोला तो वो भी बोले, लेकिन उसके दिमाग में क्या है कि अगर मैंने सिर्फ इसको फोन कॉल ही कर लिया ना तो वही मेरी थैंक यू और सॉरी है. तो
expectation in general is not right, but expectation for understanding is right. आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो मुझे समझ पाए, बशर्ते आप उसको समझते। So basically expectation वर्ड अपनी दिमाग से निकालें तो ज्यादा बेटर रहेगा, but it is basic very negative and give you much pain in any relationship. Responsibilities. I always run off from responsibilities. So basically ये भी जो क्वेश्चन पूछा आपने, ये भी एक कोचिंग का पार्ट है। ये इट्स मैं आपको बताऊंगा कोचिंग में डिफरेंस क्या होता है, और ये पार्ट वर्कशॉप सेमिनार में आंसर इसका बहुत सुपरफिशियल हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागते हम भागते हैं उन चीजों से जो हमें पसंद नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, एक शख्स जो कॉलेज या स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे या 8 बजे नहीं उठ पाता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पे जाने के लिए 4 बजे संडे को उठ के चला जाता है। वो आलस कहाँ चला गया? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठने की कहाँ चली गई? वो अलार्म नहीं बजता तब भी उठता है, क्योंकि वो उसके पसंद का काम था तो उसको कर दिया। जो पसंद का काम नहीं होता हम उसे टालते हैं, हम उस पे प्रोकास्टिनेट करते हैं। तो जो आप कह रहे हो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप पे थोपी जाती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद अपने को देते हो वो आप पूरी कर लेते हो। And the question I'm taking from Nivedita Shivare, somewhere I confused to identify what is right and what is wrong. So how could I identify the difference? Okay, it's a very very good question, और मैं इसका बहुत छोटे में जवाब दूंगा because बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। There are two types of right and wrong, Nivedita. One is for me right and wrong, and one is universal right and wrong. So आप जो कंफ्यूज होते हो आइडेंटिफाई करने में, वो होगा राइट एंड रॉन्ग फॉर यू। तो यू हमेशा सब्जेक्टिव होता है, एक चीज किसी के लिए राइट हो सकती है, वही चीज किसी के लिए रॉन्ग हो सकती है। सो सब्जेक्टिव ये है कि आपको ढूंढना है कि आपकी वैल्यू से जो चीजें मैच कर रही हैं वो ठीक है कि नहीं, आपके लिए क्या गलत है क्या सही है, वो आपका सब्जेक्टिव है। लेकिन एक होता है यूनिवर्सल राइट एंड रॉन्ग, जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट एक यूनिवर्सल राइट एंड रॉन्ग है, लेकिन अगर वो बड़ा ऐसे काम करे जो कि रिस्पेक्टेबल ना हो फिर भी उसकी रिस्पेक्ट करना, ये यूनिवर्सल राइट एंड रॉन्ग में नहीं आता है। सो आपको आइडेंटिफाई करना है यूनिवर्सल राइट एंड रॉन्ग, किसी का कत्ल करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को दुख देना, ये यूनिवर्सल राइट एंड रॉन्ग है। किसी को बेइज्जत करना, ये यूनिवर्सल राइट एंड रॉन्ग है। लेकिन किसी ने ऐसा बोला तो मुझे गलत लगा, ये सब्जेक्टिव है। तो निवेदिता, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जाना पड़ेगा कि आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, आपका टेम्परामेंट क्या है, बाय बर्थ टेम्परामेंट क्या है जिससे आपको चीजें बुरी लगती हैं, वहां से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इट्स आई थिंक निवेदिता, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजिंग इन राइट एंड रॉन्ग, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजिंग आइडेंटिटी, हु यू आर एक्चुअली एंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर मेड ऑफ। सो आई थिंक इसके ऊपर काम करना चाहिए। Thank you, sir. Thank you, sir. Now, so there is a little light required in the area of introversion. I would like to request you that actually students, sometimes they have the potential and they are very good at that part, but they find themselves, they are dim-witted, they are not good, they are not intelligent, they are comparing themselves with others. They look at, some people are so they are so outspoken, actually they are the life of parties, so they think they want to be like them. So is it good that introverts are really a neglectable people? Do they not have any strengths, or they have their different energy level? So please express this to the students, because some students they have so much in them, but they are not able to come to that level of extroversion with the students. Those who are doing, they're shouting, they're speaking a lot with the people, they're not mixing with them. Perfect. It's a very good question, Geeta, and it's not a question, it's a complete subject of research. मैं काफी दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे कि आपने देखा ही है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन बोथ आर जेनेटिक। तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ जेनेटिक, यानी आपके साथ बाय बर्थ आया है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बर्थ से इंट्रोवर्ट हो और बाद में एक्सट्रोवर्ट हो गया हो, ऐसा नहीं है। आपको लगता है तो गलत लगता है। तो ये हमारी इंट्रोवर्ट क्वालिटी जो है, ये बर्थ के साथ, जीन्स के साथ आती है, हमारे पेरेंट्स से जो हमारे बिहेवियर ट्रांसफर होते हैं उसके अंदर आती है। सो इसको चेंज करना, इसको बदलना एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, यानी ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको अपनी इंट्रोवर्जन को चेंज नहीं करना है, लेकिन ये
आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी एक्सट्रोवर्जन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जो लोग आके बोल पाते हैं वो एडवांटेज ले जाते हैं, जो लोग कह पाते हैं वो अपॉर्चुनिटीज को ले जाते हैं, वो लोग आगे आके चीजों को ग्रैब कर लेते हैं। सो इंट्रोवर्ट्स को लगता है कि वो पीछे रह गए, वो पीछे रह जाते हैं, बट ऐसा ट्रू नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी इज एन इंट्रोवर्ट, अ कंप्लीट इंट्रोवर्ट, इंडियन कैप्टन, लेकिन ये अपने प्रेजेंट कैप्टन वो एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन दोनों कैप्टन्स हैं और महेंद्र सिंह धोनी को अभी तक का सबसे बेस्ट कैप्टन मानते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम इंट्रोवर्ट हैं, एडिसन इंट्रोवर्ट हैं। क्या आप सोचते हैं सक्सेसफुल नहीं है? द क्वेश्चन इज, दोनों का दिमाग अलग तरीके से चलता है, इसको ध्यान रखिए। इंट्रोवर्ट का दिमाग अलग तरीके से डिजाइंड है, एक्सट्रोवर्ट का दिमाग अलग तरीके से डिजाइंड है। कोई भी गलत नहीं है, सिर्फ गलती कहां आती है, जब हम सोचने लगते हैं इंट्रोवर्ट की मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना है। एक फिश सोचती है मुझे बर्ड बनना है, पॉसिबल है क्या? नॉट एट ऑल। एक बर्ड सोचती है मुझे फिश बनना है, नॉट पॉसिबल। बट एक बर्ड अगर ये सोचे मुझे बेटर बर्ड बनना है, पॉसिबल है। एक फिश अगर सोचे मुझे बेटर फिश बनना है, पॉसिबल है। प्रॉब्लम इज, फर्स्ट फिशेज एंड बर्ड्स आर कंपेयरिंग एंड दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। तो यहां पर सिर्फ गीता में यह बोलना चाहूंगा कि अगर इंट्रोवर्ट्स अपने आप को समझ जाएं कि देयर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद देम, दैट्स देयर जेनेटिक मेकअप, एंड द वर्ल्ड इज कैन नॉट फंक्शन विदाउट इंट्रोवर्ट्स, कैन नॉट फंक्शन। दे रिक्वायर इंट्रोवर्ट्स, दे रिक्वायर अ लीडर हु इज एक्सट्रोवर्ट, दे रिक्वायर पीपल हु एग्जीक्यूट इन द इंट्रोवर्ट। अपने डिपार्टमेंट में लीजिए, इस कॉलेज में कितने एक्सट्रोवर्ट होंगे, कितने इंट्रोवर्ट होंगे, लेकिन सबकी टीम बनती है। सो अ टीम इज रिक्वायर्ड टू वर्क। टीम में एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं। इंट्रोवर्जन इज अ गिफ्ट, इंट्रोवर्जन इज अ ब्लेसिंग, टेक इट, इट्स नॉट वीकनेस, इट्स नॉट। सो इसके ऊपर बहुत कुछ है बोलने को, इट्स अ कंप्लीट वर्कशॉप इटसेल्फ फॉर इंट्रोवर्ट। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड द इनिशिएटिव इज कोचिंग फॉर इंट्रोवर्ट्स, क्योंकि वही लोग हैं जो पीछे होते हैं। और जस्ट मैं एक शेयर करना चाहूंगा आपके साथ एक ह्यूमन एग्जांपल। पब्लिक स्पीकिंग का बहुत जोर है आजकल, लोग पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं, बट यू विल बी सरप्राइज्ड हु आर द टीचर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। दे ऑल आर एक्सट्रोवर्ट्स। और किनको सिखा रहे हैं? इंट्रोवर्ट्स को। इसलिए वो कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखेंगे। पब्लिक स्पीकिंग फॉर इंट्रोवर्ट इज डिफरेंट। आप इंट्रोवर्ट को उसके 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 इंटरेस्ट का सब्जेक्ट दीजिए, उसके डेप्थ का सब्जेक्ट दीजिए, इतना अच्छा बोलेगा कि एक्सट्रोवर्ट भी पर हैरान हो जाएंगे कि ये पहले तो बोलता नहीं था, आज इतना अच्छा क्यों बोल रहा है। सो एज टीचर्स भी मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, एज टीचर्स भी अगर आपको इंट्रोवर्ट स्टूडेंट मिलते हैं तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए, हिडन पोटेंशियल को, और उनके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को उन्हें दीजिए, देखिए वो कैसे बोलते हैं, किस तरह सामने आते हैं। सो निवेदिता नहीं सॉरी, किसका? आपका क्वेश्चन सर, आपके क्वेश्चन का एक सिंपल लाइन में आंसर, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स नॉट अ वीकनेस। अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग, नहीं तो ये वीकनेस बन जाएगी। थोड़ा डीप में जाइए, अंडरस्टैंड कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढिए, उस पर काम कीजिए। और एक क्वेश्चन आया है इशिका की तरफ से, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज, देन व्हाट अबाउट एम्बिवर्ट्स? एम्बिवर्ट, इट्स परफेक्टली वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपने इस पे काम किया हुआ है। यस, देयर आर एम्बिवर्ट पीपल। एम्बिवर्ट कौन होते हैं? जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का मिक्स होते हैं, यानी वो एक्सट्रोवर्ट भी हैं और इंट्रोवर्ट भी हैं, एम्बिवर्ट होते हैं। बट बेसिकली कभी भी कोई इंसान, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्जन का ना एक स्केल होता है, उस स्केल में अगर आप 0 to 10 माने, 0 मींस 0 10 नहीं, मतलब एक स्केल मान लीजिए, एक्सट्रीम है, इस एक्सट्रीम पे एक्सट्रोवर्ट खड़े हैं, इस एक्सट्रीम पे इंट्रोवर्ट खड़े हैं। हम कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं होते, वी आर ऑलवेज इन बिटवीन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मैं कैसे होऊंगा? मेरा 7 आ रहा है इंट्रोवर्ट में, 3 आ रहा है एक्सट्रोवर्ट में, तो मैं इंट्रोवर्ट हूं। अगर मेरा दोनों में 5-5 आता है तो मैं एम्बिवर्ट हूं। यस, देयर आर एम्बिवर्ट पीपल, लेकिन उनका भी झुकाव, यानी उनका थॉट प्रोसेस एक तरफ होता है। तो बेसिकली दे आर एम्बिवर्ट, बट एम्बिवर्ट का झुकाव किस तरफ है, वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। बट यू आर राइट, एम्बिवर्ट आर देयर, एम्बिवर्ट्स आर देयर, होते हैं। और एम्बिवर्ट आर वेरी वेरी बैलेंस पर्सनालिटी, जो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ह्यूमन नेचर को समझोगे, हर एक इंट्रोवर्ट, हर एक एक्सट्रोवर्ट एम्बिवर्ट बन सकता है जब वो अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करे एक्सट्रोवर्जन। आई हाईली रिकमेंड all the people who are introverts here in our this particular thing, you are blessed, but bird बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप फिश हैं तो फिश ही रहिए। Identify your strength and work on it,
and mark this thing in your diary or something कि I will find my strength and work on it. Don't worry about the weakness. वो अपने आप चली जाएंगी अपने टैलेंट को बाहर लाने के लिए. एंड टीचर्स को मैं ये मुझे पता है टीचर्स पे काम कर रहे हैं, मैं उसको उनको और बोलना चाहूंगा. जो हमारी टीचर्स की वर्कशॉप होती है, और मैं भी चाहूंगा कि कभी मुझे मौका मिले टीचर से बात करने का. टीचर्स में खुद भी इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन होता है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स. तो वो भी जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसको, तो वो किससे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, कौन से स्टूडेंट्स जो उनसे रिलेट करते हैं, वो उनको समझ में आ जाएगा. तो कई बार हम कई स्टूडेंट्स को बोलते हैं ये स्लो है, कई स्टूडेंट्स को बोलते हैं ये पीछे रह जाता है. वो पीछे नहीं है, वो इंट्रोवर्ट है, उसका पेस थोड़ा डिफरेंट होता है. उनको लॉजिक चाहिए होते हैं, उनको समझने का टाइम चाहिए होता है. कि जब तक वो समझ रहा होता है 3 एक्सट्रोवर्ट अपने क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उनको लगता है यार मैं तो पीछे रह गया. क्योंकि एक्सट्रोवर्ट पीपल आर ऐसे, जबकि ये टाइम लेते हैं. बट नॉट रॉन्ग, not wrong. This is required. So give them that much of time. So we'll discuss sometimes else also, because this is very vast topic. Thank you so much. Now it is the time to register my humble and sincere gratitude towards all the listeners of the program. I feel greatly honored to propose vote of thanks on behalf of the Department of Applied Science and Humanities. In the series of thanking, first of all, I'd like to mention the name of the Honorable Director of IPS Group of Colleges, Dr. Arun Kumar Tyagi sir, for his huge support and organizing such wonderful programs, such valued programs. We are indebted to you, sir, for your trust on us. We feel obliged to thank working President Mr. Ashwini Mishra, the Chief Administrative Officer, and Chief Administrative Officer, Mr. P.K. Ghosh, who always motivates for such programs. Thank you so much, sir, to be with us. I extend my heartfelt thanks to Dr. Premanand Singh Chauhan, the principal of the College of Technology and Management, who is ever ready mentor, guide, and supporter for his faculty and always motivated for taking such steps. Thank you so much, sir. I congratulate and register thanks towards Dr. Jyoti Mishra for her faith, support, and understanding on her team. The HOD of the department, she's always with us. Thank you so much, ma'am. No program is successful without the support of our colleagues and participants. So thank you so much from bottom of my heart, everybody. The special thanks to the technical management team, including Dr. Karnendra Verma, Purushottam Verma, Vineet sir, everybody, and everybody who listened to this webinar, who joined us throughout and had patience, and students, everybody. So thank you so much, everyone. This session doesn't end here. It will go with your brains. You will think about it. You will jot it down. Hope you have benefited with this.